well, and it's been long since we have organized a session like this. But thanks to Android Study Jam, that we are again gathered to learn something new. So you must be wondering, what is Android Study Jam? Android Study Jams are the series of study groups, workshops, or sessions organized and facilitated by a GDSC campus for their students to kickstart their learning on modern Android application development using Kotlin. Students will learn how to develop their very own beautiful and functional Android app. So in Android Study Jam, we will be learning Android development, as you might have already heard. And other than that, what is so special about Android Study Jam is that we will be learning it using Kotlin. As you know that Android development could be done with a lot of languages. One of those is Kotlin, and Kotlin has been fairly new in the Android world, but it does not matter even if it is new, but it has been actually something that is being opted by more and more industries. And we can see a huge rise in Kotlin in the IT industry currently. So I would like to shed some light on Android. As you know, Android is something that is in our phones, and currently the phone that I'm using also has Android. It has been the part and parcel of our life since few years now, and I would like to describe it as a mobile operating system which is based on modified version of the Linux. And I don't think I need to say a lot about Android. We have it everywhere around us, from uh, mobile phones to wearables. We have it everywhere, and it is an open source software which makes it much more better. So we know that there are a lot of languages for learning Android development. There is Java, there is Kotlin, there is C++ as well. But Java has been something that has been actually ruling this Android world till now. But in 2017, Google has announced Android to be the Kotlin first. And the reason behind this is that Kotlin is, I would say, describe it as a better language as compared to Java. It is very similar to Java, and it also runs on JVM. And the best thing about Kotlin is that it is interoperable, which means that we can also use the features of Java in Kotlin, and it is null safe. And I personally love Kotlin because of the same reason, because it's null safe, and a lot of apps get crashed because of this problem, that a lot of times we return something that is null. So I think that was it from my side. Now I would like to introduce you to the speaker of this session, that is Niranjan Bor. Niranjan Bor is also the Android facilitator for our campus, that is GDSC TIB. And I would like to hand the session to him. He would be taking us through this journey. He would be guiding us, and he would make sure that none of us face any issues, be it beginners or anyone else. And I hope that at the end of this session, we will be much more knowledgeable about Kotlin and Android as we were initially when we joined. So, handing over to Niranjan. Thank you, Niyadi. So, hello guys. Good evening. So, this is Niranjan Baur. This is our actually first session of becoming an Android developer by Android Study Jam. तो एक सेकेंड मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ पहले. इज इट विजिबल ना? हाँ Yeah. ठीक है. Yeah, it's visible. अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, कॉर्डिंग बेसिक से एकदम. तो पहले जो हमको करना है, तो हम सीखेंगे आज कॉर्डलिंग. तो कॉर्डलिंग ऑफिशियल जो कॉर्डलिंग का डॉक्यूमेंटेशन है, वहीं से हम एकदम बेसिक्स वाला जो प्रोग्रामिंग होता है, तो उसको ही हम ऐसे गो थ्रू करेंगे. तो ये हम हमारा कॉर्डलिंग का जो बेसिक पेज है ऑफिशियल, तो वहीं पे हमें. तो हम एक्चुअली कॉर्डलिंग चूज क्यों करें? नियादी ने बहुत बढ़िया बात बोले कि इट्स अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज. तो वो तो है ही, बट इसके अलावा इट्स अ मॉडर्न लैंग्वेज दैट मेक्स डेवलपर हैप्पियर. सो इट्स द एक्चुअली ट्रू थिंग्स दैट ये सच में डेवलपर को हैप्पी करता है या कि नहीं, वो तो हम आगे जाके देखेंगे. बट इस यही इसका बात है कि हाँ, इसलिए हम कॉडलिन को यूज करें. इसके अलावा हमारे पास कॉडलिन को यूज करने के और जो वजह है, ये वो
ये कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, या फिर आप इसका मतलब आप iOS या फिर एंड्रॉयड बोथ साइड आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा सर्वर साइड में एप्लीकेबल है वेब फ्रंट एंड एंड ऑल्सो एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड इट्स बाय गूगल, ठीक है। तो गूगल रिकमेंड करते हैं कि कॉटलिन यूज करो एंड्रॉयड के लिए। तो ये सारी चीज है। और आप डेटा साइंस के लिए भी एंड्रॉयड कॉटलिन यूज कर सकते हो। तो ये है। तो आगे जाकर देखेंगे हम कॉटलिन के जो बेसिक्स हम आज करने वाला है। तो यही से हम करेंगे। ये बहुत बढ़िया एवं आसान एक डॉक्यूमेंटेशन है जो न्यू टू प्रोग्रामिंग है। तो वो इस तरह से कर सकते हो। आपका जो स्टार्ट है आपका जर्नी का, तो कॉटलिन में वो यहाँ से करो। यहाँ पे भी लिखा है कि दिस इज एन ऑफिशियल सेट ऑफ स्मॉल एंड सिंपल एनोटेड एग्जाम्पल डिजाइन दोज न्यू टू कॉटलिन। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अभी। नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो चलो आज देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो पहला जो इसका है हेलो वर्ल्ड। तो सभी लैंग्वेज में लाइक सी बोलो या फिर जावा पाइथन जो भी लैंग्वेज है हमारे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहला एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारा जब टीचर्स आते थे कॉलेज में, वहाँ पर देखते थे कि मैम ने ऐसा बोला कि चलो आज हम ये वाले लैंग्वेज सीखने वाले हैं, तो इसका पहला प्रोग्रामिंग है कुछ लाइन प्रिंट करना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। ठीक है। तो सभी लैंग्वेज में इस तरह से प्रोग्रामिंग होता है सबसे इजी। तो अभी फिलहाल मैं भी इस तरह से एक छोटा सा सबसे इजी वर्ड जो है वो प्रिंट करने वाला हूँ, रन करने। बट करे तो कहाँ करे, कुछ आईडीज का जरूरत है इसके लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि, और कॉडलिन भी करता है कि तुम ये वाला सॉफ्टवेयर जो है हमारा इंटेलिज आईडी, ये वाला सॉफ्टवेयर आई मीन दिस वन, मैं ऑलरेडी ओपन है। तो एक्चुअली ये वाला यूज कर सकते हो। ये हमारा बेसिक का सॉफ्टवेयर है। इसमें कॉडलिंग बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट होता है। इसके अलावा तुम अपना ब्राउजर में भी कॉडलिन को डाउन कर सकते हो। एज इन दिस वेबसाइट कॉटलिन प्लेग्राउंड करके एक वेबसाइट है, कॉडलिन ने खुद डेवलप किया है इसको। तो इसके अंदर भी अपना जो कोड्स वगैरह है अब इसके अंदर भी रन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं बताऊंगा कि ये एक इजी टू है। अगर आपके मीन सिस्टम रिक्वायरमेंट कंप्यूटर या डेस्कटॉप का जो है तो थोड़ा कम है, तो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। बट बेसिक प्रोग्राम इसके अंदर चल जाता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा के लिए हमको ये वाला जो इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है यही यूज करना बेटर बढ़िया रहता है। बट एक बार हम देख लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करता है। तो सिंपली आप सर्च करें इंटेलिजेंस आइडिया इस तरह से, और इसका जो पहला लिंक आएगा यहाँ से आप एकदम इस वाले ऑफिशियल पेज में आ जाओगे। और इसके बाद डाउनलोड। हाँ, इसके बाद इसका दो वर्जन आता है, एक अल्टीमेट करके। ये एक आपका 3 डे फ्री ट्रायल आपका देगा, उसके बाद आपका पैसा लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो हम इसको नहीं, ये वाला कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करेंगे। ये वाला जो है ये आपका फ्री है, आप यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स भी है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपका डाउनलोड क्लिक करना और आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे इसका। ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ। तो हाँ, ओह सॉरी। तो इस तरह से हम करेंगे आज। हाँ, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो अब इधर आपका जो ये सब स्निपेट्स है आपका, इसके अंदर आप खुद से भी इस तरह से रन कर सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हो कि ये जो फंक्शन मेन है, मेन फंक्शन इसका एंट्री पॉइंट होता है। और इसके अंदर जो हमारा एक मेथड कॉल हुआ है प्रिंट एलन, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास किया है स्ट्रिंग, वो हेलो वर्ल्ड है। और ये
क्योंकि ये मैंने इसके अंदर एज प्रिंट किया तो ये चेंज प्रिंट कर रहा है। बट अगर मैं इसको, ये वैल टाइप, हमारा जो वैल टाइप है, जो हमारा इसके अंदर वैल टाइप है, अगर मैं 20 को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ दो या फिर कोई इंटीजर वैल्यू के, क्योंकि ये हमारा बी है और बी का बीटा टाइप है इंटीजर। तो अगर मैं इंटीजर एक वैल टाइप को चेंज करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो देखो एक एरर आएगा कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइन। तो बेसिकली यही इसका मुद्दा बात है कि var टाइप जो है उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, बट वैल जो है वो एक इम्यूटेबल वेरिएबल है। इसके अंदर हम इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखा है, अगर पढ़ लेना। और ये जो हमारा पेज है ना, इसके अंदर एक बढ़िया तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है। अगर देख सकते हो कि ये हमारा लाइन नंबर 1 है, ये कमेंट आउट करके 1 लिखा हुआ है, इसका नीचे में एक 1 करके इसका जो डेफिनेशन है क्या हो रहा है इसके बारे में, वो भी लिखा है। तो इसमें आसान होता है कि कौन लाइन में क्या हो रहा है जिसको जानना। तो हो गया है हमारा वेरिएबल्स टाइप का। अब चलेंगे हम फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन एक कोड का छोटा पार्ट होता है, एक मेथड होता है, जो हम देखेंगे आगे जाके, देखेंगे कि इसका यूज कैसे करें। तो बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा स्निपेट है, अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद मैं आपका क्लैरिफाई कर दे दूंगा कि Sorry to interrupt you, Niranjan, but I think you need to increase the zoom in a little because it is not visible clearly. ओके, इज इट नाउ विजिबल? Yeah, it's visible now. Also, ओके, anyone, if you face any issues or anything, you can ask him. Also, try to code along. And that way, you can make the most out of this session. And don't worry about how to get started with Kotlin because Niranjan will guide you through it, and you will, learn it with ease if you code along. So yeah, thanks, Niranjan. You can continue. हाँ थैंक यू। हाँ, तुम लोग मेरे साथ भी कर सकते हो कि कैसे कर सकते हो आपका आईडीज वगैरह डाउनलोड करके, या फिर अभी फिलहाल आपके पास आईडीज नहीं है तो मेरे साथ वो वाला कॉडलिंग का जो प्लेग्राउंड है इसमें भी कर सकते हो, ठीक है? तो ज्यादा, तो एक साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर सीखेंगे। तो हाँ, तो कहाँ पर था फंक्शंस। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है? एक कोड का छोटा छोटा पार्ट्स होता है कि इसके अंदर हम एक सेट्स ऑफ कमांड्स या फिर जो इंट्रोडक्शन है, जो भी सारे चीज इसके अंदर हम डालते हैं, देते हैं इंफॉर्मेशन, डेटा। उसके बाद वो हमारा जो मेन फंक्शन है, जहाँ पर हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है, उसके ऊपर हम कॉल करते हैं कि चलो अब तुम ये फंक्शन तुम ये कम करो, वो फंक्शन तुम वो कम करो। इस तरह से हम हमारा जो मेथड रहता है वो कोड को छोटा करता है। तो इसी वक्त देखो कि इस तरह क्या हुआ है इसके अंदर। तो मेरा इसके अंदर एक पहला जो फंक्शन है वो प्रिंट एसएमएस, प्रिंट मैसेज है। तो चलिए इसको हम कंट्रोल सी करके आईडी में रन करके देखते हैं कि कैसे लगता है, ठीक है? सॉरी, इसके अंदर नहीं, ये बाहर होगा। ठीक है, तो एक हमारा प्रिंट एसएमएस मैसेज करके एक हमारे पास फंक्शन है। और वो देखो, एक एक पैरामीटर वो ले रहा है मैसेज, और उसका टाइप है स्ट्रिंग, एंड ये रिटर्न कर रहा है यूनिट। यूनिट एक टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है। इसका मतलब ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। जैसे कि हमारा पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होता है, लाइक इंटीजर, नंबर्स के लिए चारों है, लाइक बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड इंटीजर। उसके बाद फ्लोटिंग नंबर, लाइक पॉइंट्स में जो नंबर आते हैं वो फ्लोट हो गया। और दूसरा हो गया हमारा डबल। उसके बाद कैरेक्टर आएगा, स्ट्रिंग आएगा, जो कैरेक्टर को डिफाइन करने के हमारे पास सिंगल कोड में है। और स्ट्रिंग के लिए हमारे जो डबल कोड होता है उसके अंदर हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। वो हम एक एक करके देखेंगे। और लास्ट में है हमारा बुलियन। तो यूनिट भी एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है जो कुछ कुछ नहीं रिटर्न करता है, जैसे हमारे सी में वॉइड होता है ना, उसी तरफ। सो बेसिकली तो इसके अंदर इसको हम यूज कैसे करें? तो ये एक मैसेज को प्रिंट करने वाला है, मैसेज वेरिएबल का वैल्यू। तो बेसिकली क्या करने करने वाला है, देखो प्रिंट और फंक्शन मेन के अंदर प्रिंट मैसेज जो हमारे मेथड्स है उसके अंदर सिर्फ हम एक
वैल्यू को पास किया है, सिर्फ एक वैल्यू। तो हम भी यही करते हैं। सो प्रिंट मैसेज, और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग, उसको चाहिए स्ट्रिंग, तो हम इसको अंदर एक स्ट्रिंग ही पास करते हैं, तो वो कुछ रिटर्न करेगा। तो मैसेज का जो वैल्यू है डिफॉल्ट वो हेलो है। तो देखते हैं, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो देखो इसका अंदर हेलो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम सारी चीज कर सकते हैं। लाइक एक डिफॉल्ट फंक्शन में लिखता हूँ कि लाइक सम, इट्स अ टाइप ऑफ, ये दो एक साथ दो पैरामीटर्स को लेंगे, लाइक एक्स, एंड उसके बाद आएगा वाई, बोथ द टाइप ऑफ इंट, ठीक है। इसका भी टाइप इंट होना है, क्योंकि एक इंट ही रिटर्न करेगा। दो इंट का अगर हम प्लस करेंगे तो इसका रिटर्न भी एक इंट ही आएगा। तो प्रिंट एलन करते हैं, देखो उसके बाद एक रिटर्न फंक्शन लगाते हैं, रिटर्न क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, सॉरी प्लस वाई। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया हो कि इसके अंदर हमारा कोई सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेमीकोलन अलावा ही हमको ये कोड अलाउ करते हैं कि ठीक है तुम रन करो, तो एक अच्छा सा काम है। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस जो मेथड है ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, एक्स और वाई का सम प्लस रिटर्न करेगा। तो पहले इसको लिखने के लिए सिंपल हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन नेम जो हमारा है सम, उसके अंदर दो पैरामीटर्स है। तो एज ए आर्गुमेंट हमको दो वैल्यूज पास करना है, वो इन टाइप का होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि 10 होगा, और कॉमा लगा के मानो कि 25, ठीक है। तो वो ये रिटर्न करेगा क्या, 35, बट इसको प्रिंट करना है ना। तो इसके लिए वो हम इसको एक वेरिएबल्स के अंदर भी डाल सकते हैं, var result, sorry, var result equals to something, and now print result, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला जो प्ले बटन है, तो 35 आना चाहिए, ठीक है, 35 ही आए। तो इसका सही से काम करना चाहिए, तो ये भी हो गया। तो अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, मानो कि लाइक इस तरह से द सम इज, उसके बाद इसका वेरिएबल का नाम। तो अगर इस तरह से हम करना चाहते हैं, तो देखो अगर मैं इसको रन करूं तो ऑब्वियसली आपका एक जो आउटपुट डिजायर है वो इसको नहीं मिलेगा। देखो इसके अंदर रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, बट इन कॉडलिन, कॉडलिन ने ये सपोर्ट करता है कि तुम स्ट्रिंग में लिखो, अगर कोई वेरिएबल आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है तो उसके आगे एक डॉलर साइन लगाओ, तो मैं इजीली समझ जाऊंगा कि हाँ ये एक वेरिएबल है, नॉट अ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो अगर अब ये मैं रन करूं तो देखो द सम इज 35। तो ठीक है, इस तरह से हम जो ये यूज कर सकते हैं फंक्शंस। फंक्शंस हो गया, उसके बाद क्या है, हाँ इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस है। अगर मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये क्या है, तो देखो सिंपली ये तो मैं समझ गया कि एक स्ट्रिंग ले रहा है इसके से इसके अंदर, और स्ट्रिंग को मैसेज को प्रिंट कर रहा है। और जो सेकेंड वाला जो है, प्रिंट मैसेज विथ प्रीफिक्स, ठीक है, सामने कुछ रहेगा उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो एक ऐसे फंक्शन बनाए, और इसका पास दो पैरामीटर पास किए हैं, एक है स्ट्रिंग टाइप और दूसरा भी हमारा स्ट्रिंग टाइप है। बट देखो इसके अंदर जो सेकेंड वाला जो प्रीफिक्स हमारा वेरिएबल का है, उसका वैल्यू हम इस एज अ पैरामीटर के अंदर ही हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया कि इसका वैल्यू इन्फो है, ठीक है। तो और जो हमारा सेकेंड वाला है वो हमारा है स्ट्रिंग टाइप, और इसके अंदर हमने प्रिंट करने क्या करने वाला है कि पहले प्रीफिक्स को प्रिंट करो, एक
थर्ड बकेट के अंदर, और उसके बाद हमारा मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, तो अगर ये फंक्शंस को हम इन मेन फंक्शंस के अंदर ढूंढे तो ये वाला है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रिंट हो गया। अगर थर्ड वाला जो है, उस वो क्या कर रहा है कि प्रीफिक्स जो वैल्यू है उसका वैल्यू चेंज करो एज अ लॉग, और मैसेज को हेलो। ये एक्चुअली देखो, मैसेज एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट है ना हमारा, और यहाँ पर देखो कि मैसेज हमारा सेकेंड आर्गुमेंट हो गया। पहले हमारा प्रीफिक्स आ गया, जो हमारा इस एक्चुअल मेथड में वो हमारा सेकेंड आर्गुमेंट था। तो वही चीज क्या किया है इसके अंदर। तो सेम थिंग्स होगा कि लॉग हेलो ही प्रिंट करेगा, क्योंकि एज अ इसका प्रिंट एलन जो फंक्शन है जो इसके अंदर लिखा है, तो पहले प्रीफिक्स ही प्रिंट करेगा, उसके बाद मैसेज। तो इस तरह से ये वाला प्रिंट किया। और उसके उसके बाद सम एक प्रोग्रामिंग एक फंक्शन की जैसे मैंने किए थे। देखो, एक सम इंट एक्स और इंट वाई करके दो पैरामीटर्स रिटर्न करेगा, एक इंट, और इसका रिटर्न टाइप एक इंट और रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई। तो सिमिलरली इसके अंदर जो हमने किया है प्रिंट एलन, और एक्चुअली सम के प्रिंट एलन के अंदर ही हमने फंक्शन को कॉल किया, लाइक सम 1 और 2, तो आउटपुट 3 होने वाला है, तो 1 + 2 3 होता है। और सिमिलरली इसका जो फंक्शन मल्टीप्लाई इन एक्स वाई एंड एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो 2 और 4 इसका गिवन इनपुट है, तो इसका वैल्यू होगा 8। तो इसका जो थिंग्स है ना, 1 2 3 4 करके 10 तक, तो हमारे सारे चीज इसके अंदर डिफॉल्ट दे रखा है कि कौन सा चीज कैसे काम करेगा। हर एक लाइन क्लैरिफाई करके रखा है इसके अंदर। तो ये सारी चीज हो गया, हमारा फंक्शंस हो गया। उसके बाद नल सेफ्टी, जो निहाल ने सेशंस के स्टार्ट में बोला कि नल सेफ्टी के लिए कॉर्डलिंग सबसे ज्यादा फेमसिटी इसको मिला है। क्योंकि देखो, कुछ कुछ टाइम में होता होता था कि अगर मैं एंड्रॉयड ऐप के बारे में बात करूँ कि मानो आपके पास कुछ ऐसे आप एक ऐप बनाए कि उसके लिए 3 इनपुट्स आपके यूजर से लेना होगा, और उसके हिसाब से आपको एक आउटपुट देना है। ठीक है, मान लो आप एक सिंपल इंटरेस्ट ऐप बनाए हो, और उसके अंदर का प्रिंसिपल रेट एंड इंटरेस्ट आप यूजर से मांग रहे हो, और उसके बाद वो कैलकुलेट करके आप अपना एक जो जो हमारा इंटरेस्ट है वो शो कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर यूजर ने मानो को एक का वैल्यू, मानो प्रिंसिपल का वैल्यू वो नहीं दिया, सिर्फ रेट और इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो पास किए, तो सिंपली एज अ इसमें क्या होगा कि तो पी का हमारा प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो तो हमारा नाल चला गया ना। तो अगर हम पी आर टी बाई 100 जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है, अगर वो मैं यूज करूँ, तो पी का वैल्यू नल है, और आर जो आर का वैल्यू है, आई मीन रेट और टाइम का, वो अगर कुछ भी है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते नल नल वैल्यू के साथ। तो इसलिए वो एक एरर थ्रो करेगा, और आपका ऐप भी क्रैश हो जाएगा। ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसके वजह से कॉलिंग उन्होंने किया एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन निकाला है कि ठीक है, अ, अब तो एक वेरिएबल के अंदर जो कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर तो आप एक नाल जो हमारा वैल्यू है वो आप स्टोर नहीं कर सकते, बट फिर आपको एक
अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि ठीक है आप यूज करो इन अ अदर वे। तो किस तरह से कर सकते हैं कि मानो कि एक मेरे पास एक वेरिएबल है var, इज अ टाइप ऑफ var है, मैं इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं var लिखा, var नेम, और मेरा नाम का जो इसका टाइप है तो वो हमारा स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हम एक नेम का जो फॉर्मेशन है वो डिक्लेयर कर सकते विथ टाइप। और मानो कि मेरा नाम मैंने पास किया निरंजन, ठीक है, और मैं चाह रहा कि नेम चेंज करके कुछ दूसरा करना है, तो मैं सिंपली नेम इक्वल्स टू लाइक एंड्रॉयड, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सेट किया, और इसके बाद हम मैंने प्रिंट एलन करके हमारा जो नेम है उसको प्रिंट करते हैं। तो देख सकते हो सिंपली इसका एंड्रॉयड प्रिंट होना चाहिए, और एंड्रॉयड ही प्रिंट हुआ है इसके अंदर। तो var नेम हमारा इसके अंदर क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल है हमारा var टाइप का, और उसका अंदर हमारा जो वैल्यू है वो एक निरंजन। और मैं क्या किया उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नेम का जो वैल्यू है उसको चेंज करके एंड्रॉइड कर दिया और नेम को प्रिंट कर दिया। सिंपल से प्रोग्रामिंग है, बट मैं चाहता हूँ कि एक एंड्रॉइड ना रखे, मैं इसको नल डिफाइन कर दूँ। देखो मैं जब भी इसको नल करने चाह रहा तो एक एरर थ्रो कर रहा है कि नल कैन नॉट बी अ वैल्यू ऑफ अ नॉन नल टाइप स्ट्रिंग। जो आपका नल नहीं हो सकता, एक वेरिएबल आपके पास है वो एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो आप क्यों उसे नल बनाना चाहते हो? तो इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था इस तरह। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे तो करना ही है इसके नल। तो सिंपली कॉर्डिन वालों ने क्या किया, इजी वे निकला कि आपका जो टाइप है उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क लगा लो। सिंपल एक क्वेश्चन मार्क लगा दो तो कंपाइलर समझ जाएगा कि एक नल टाइप का है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखो नेम प्रिंट क्या है, नल। तो इस तरह से तुम कंपाइलर को बोल सकते हो कि भाई मेरे पास तो एक वैल्यू है, बट कभी भी अगर मेरा वैल्यू का वेरिएबल का वैल्यू अगर नल हो जाए तो तुम उसको एज अ एरर मत समझो, कोई गलती होगा, बट क्रैश मत करो, ठीक है। इस ये सेफ्टी कॉर्डिन ने हमें प्रोवाइड किया, एक बहुत बढ़िया सेफ्टी है। तो बेसिकली दिस इज द थिंग्स। अच्छा ठीक है, तो अब बारे देखो ये वाला जो चीज है हम इसको समझते। ये देखो एक var टाइप का वेरिएबल है, वो है नेवर नल। वो क्या टाइप लेता है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है, और इसका वैल्यू है दिस कैन बी नल, ठीक है, इसका वैल्यू नल नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं उसका दूसरे लाइन में कर रहा हूँ कि नेवर नल इक्वल्स टू नल, जो मैं अपने आईडी में किया, ठीक है। तो इसको रन कर तो डेफिनेटली एरर, ठीक है, नल कैन नॉट बी अ वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो देख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो var nullable स्ट्रिंग टाइप है इसका, उसके बाद हम नल पॉइंटर को हमने लगा दिया कि हाँ ये एक नल टाइप हो सकता है, और उसका वैल्यू है यू कैन कीप अ नल हेयर, नल रख सकते हो इसके अंदर। मैं इसके अंदर नलेबल को नल किया, और इसके हम जो नलवे के नल कर दिया। और ये भी एक एरर ही थ्रो करेगा क्योंकि वेर जो इसका टाइप है इंसर्टेड नॉट नल, इसका कंपाइलर एज्यूम इज अ नॉट नल, ठीक है, एज अ नॉन नल टाइप ऐसा इसको ट्रीट करेगा। अगर फिर इसके वैल्यू नल करना चाहोगे तो फिर से ये एरर थ्रो करेगा। देख सकते हो कि एक एरर ही है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो चलो अब है सिंपल से हमारा, इस वजह से ये हमारा तो नल हो जाएगा, हो गया। उसके बाद एक फंक्शन लिखा है कि स्ट्रिंग लेंथ, str लेंथ इज वेरिएबल क्या है, नॉट नल, उसका इनपुट क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, एंड ये रिटर्न करेगा इंटीजर, एक एक इंटीजर रिटर्न करेगा। अच्छा इसका रिटर्न क्या होगा, नॉट नल, जो हमारा वेरिएबल्स है नॉट नल, इसका लेंथ रिटर्न करेगा। तो लेंथ तो एक इंटीजर में ही होना चाहिए, तो इसलिए वो ना इंटीजर रिटर्न करके लिखा है। तो str लेंथ नेवर नल, और
ये दोनों का वैल्यू। तो एक्चुअली ये अगर रन करो तो ये पर रन नहीं होगा, तो एक्चुअली इसको अलग से लिखना होगा। तो कंट्रोल सी करके मैं इसको अपने आईडीज में लिख देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, तो ये हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये एरर आ रही है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप है। देखो हमारा जो str लेंथ है वो एक स्ट्रिंग लेगा, बट इधर इसके अंदर जो स्ट्रिंग टाइप का जो होता है हमारा, ये वाला जो सीन वो नहीं लगा है, तो इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। कंट्रोल एक्स, इसके बाद कंट्रोल वी। ठीक है, तो हमारा नॉट नल जो है इसका वैल्यू स्टोर करेगा। तो मैं इसका एक वैल्यू, अच्छा प्रिंट एलन कर देता हूँ, प्रिंट एलन। इसके बाद इसको कॉपी करो, इसके अंदर डालो, इसके आगे भी प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, इसको कॉपी, सॉरी इसको कॉपी करो, इसके अंदर डालो। अब मैं इसको अगर रन करूँ इस तरह से, तो देखो पहला जो हमारा मेथड्स है ना, नेवर नल, देखो 9 कैरेक्टर्स है इसके अंदर, तो इसका लेंथ 9 होना चाहिए। और इसका दूसरा जो है नलेबल, इसका 8 है, 4, और ये वाला 4, तो इसका 9 और 8 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो नाल सिफ्टी है वो होता है इस तरह से। तो इसके बाद इसके अंदर जो 1 2 3 करके ये वाला लिखा है, तो वो भी कर सकते हो, देख सकते हो। और उसके बाद हमारे आ गया क्लासेस। क्लासेस एक सेम लाइक थोड़ा सिमिलरिटी है फंक्शंस के तरह। जिस तरह के अंदर हम क्या कर सकते, कुछ क्लास के अंदर हम वेरिएबल वगैरह स्टोर करके उसका वैल्यू को लेकर एक्सेस कर सकते हैं। तो वही बात है इसके अंदर, देखो कि एक कांटेक्ट करके क्लास है, और उसका ऊपर एक और एक क्लास है कस्टमर। ठीक है, तो हमारा क्लास का जो भी रूल्स है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल में होना चाहिए, तो उस सी हमारा कैपिटल में है। और इसका ठीक है, इसके अंदर पैकेज डिलीट हो गया। फिर भी अगर इसको रन करो तो इसका, हाँ तुम लोग बताओ, नहीं नहीं होगा क्योंकि इसका पैकेज जो है ना, वो पैकेज मैंने डिलीट कर दिया। ये होगा भी। अच्छा, अच्छा कॉन्टैक्ट जो हमारा एक क्लास का नेम है, एक एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि शायद मेरे एक दूसरे भी फोल्डर है उसके अंदर कॉन्टैक्ट जो है, मैं इसको डेटा कर देता हूँ। ठीक है, डेटा, और इसका वैल्यू भी हम चेंज करके डेटा कर देते हैं। तो अब बताओ, जो इसका हमारा वैल्यू है, जो लाइन नंबर 5 है हमारा ना, ये वाला, इसका आईडी क्या होने वाला है, तो कमेंट में बताओ। वन, अच्छा, और कोई? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन है, वो मैं बाद में देखेंगे। हाँ एक्चुअली इसका वैल्यू वन ही आएगा, एग्जैक्टली क्योंकि देखो जो जिसको नहीं मालूम है, मैं इसको सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि हमारा जो कस्टमर डेटा क्लास है, वो हमारा क्या कि एक वेरिएबल, कॉन्टैक्ट नाम का एक वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है डेटा क्लास का, कॉन्टैक्ट। और उसी उसके हिसाब से मैं अपना आईडी जो है, ये वाला वन वन को एक्सेस कर रहा हूँ
जो आईडी कॉन्टैक्ट डॉट आईडी, ठीक है। अगर मैं इसका ये हमारा तो वन प्रिंट करेगा, ये सही है। अगर मैं प्रिंट एलन करके सॉरी, अगर मैं प्रिंट एलन करके ये वाला लिखता हूँ कि कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ये वाला मैरी एट द रेट जीमेल आएगा कि ये जेन एट द रेट जीमेल आएगा? ये बताओ। जेन, गुड, जेन आएगा। क्योंकि देखो एग्जैक्टली जेन ही आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है हमारा मैरी, ये हमारा पहले डेटा था, तो उसके डेटा मैंने चेंज करके इसके अंदर चेंज होके जेन आएगा। जेन मैंने असाइन कर दिया। तो उसके बाद अगर मैं इसको इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो आपका जेन जो है वो प्रिंट होगा। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि जो आंसर तुमने दिया कि सही है कि नहीं। हाँ भाई, एकदम सही है, वन एंड जेन। तो ग्रेट जॉब। तो हाँ, ठीक है, चलो वही वाला। तो बेसिकली इस ये ठीक है, जेनेरिक्स थोड़ा ये वाला जेनेरिक्स थोड़ा हाई लेवल है, इसके हम बाद में देखेंगे। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होता है इनहेरिटेंस, क्लास में एक सबसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक बहुत ही फायदा होने वाला है इनहेरिटेंस। ये क्या करता है कि आपका जो सुपर क्लास है उससे आपका जो लोअर क्लास है ना, उसके डेटा को इनहेरिट कर सकता है। आई मीन उसको ओवरराइट करके वो इनहेरिट कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला जो कोड है सिंपल, इसको कॉपी करके मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, सिंपल पैकेज रहने दो और वी। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आगे पहले डिक्लेयर कर देता हूँ कि कौन सी क्या है। तो देखो एक क्लास डॉग है, ठीक है। इसके पहले देखो ओपन कीवर्ड लिखा हुआ कि एक ओपन क्लास है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका जो मेथड्स वगैरह होगा, इसका जो इंफॉर्मेशन होगा, तो वो और दूसरा कोई क्लास वो यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये ओपन कीवर्ड का मीनिंग है। तो ये क्या किया कि एक ओपन करके क्लास डॉग क्लास एक क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक ओपन फंक्शन क्रिएट किया है उसी तरह से, जो ओपन कीवर्ड का जो फंडा है कि यूज कर सकता है, से हेलो। तो डॉग के अंदर एक मेथड कॉल हुआ है से हेलो, और वो मेथड क्या करेगा, सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज मेथड यूज करेंगे, ऐसे कि वाव वाव करके कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके दूसरा और एक क्लास हमने बनाया कि वर्क शेयर करके, उसका क्लास का नाम है वर्क शेयर। बट देखो उसका टाइप क्या है, इस तरह से हम टाइप डिक्लेयर करते हैं ना कोलन लगा के। तो उसका टाइप है हमारा डॉग, जो हमारा ये क्लास हो गया। जो हमारे ये क्लास हो गया डॉग, तो ये डॉग से इनहेरिट करेगा, क्योंकि डॉग क्लास सुपर क्लास का यूज कर रहा है ऐसा सिंपल कॉन्स्ट्रक्ट था। और उसके बाद हमने क्या किया, इसका जो फंक्शन है से हेलो, उसको ओवरराइड कर रहे हैं यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड प्रिंट एलन विफ विफ, लाइक इसे प्रोनाउंस लाइक विफ ही होगा शायद। तो विफ विफ ये वाला कुछ लाइन प्रिंट होगा। तो होना क्या चाहिए, इस तरह से होगा। फंग मेन के अंदर हमने फंग मेन के अंदर हमने ये कॉल किया कि वेरिएबल डॉग, एक डॉग वेरिएबल डिक्लेयर करो, टाइप होगा वैल, और उसका कौन सा क्लास का होगा, डॉग टाइप का जो सुपर क्लास है वो हमने इनिशियलाइज किया किसके साथ, वर्क शेयर के साथ, जो हमारा सेकेंड क्लास है ये वाला। तो ये वाला डॉग जो हमारा वेरिएबल है, वो डॉग क्लास से यॉर्कशायर में डेटा को इनहेरिट करेगा। इसका लाइन का यही मतलब है। और अगर हम ये वाला डॉग ऑब्जेक्ट को लेकर से हेलो को रन करता है, तो अब तुम लोग बताओ कि कौन सा लाइन प्रिंट होना चाहिए, ए वाव वाव या फिर विफ। सो बताओ कि कौन सा लाइन प्रिंट होना चाहिए, वाव या विफ? अच्छा वाव वाव, विफ। अच्छा, और कोई? दो टाइप्स ऑफ आंसर मुझे मिला। और
और कोई? चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, हेजिटेट नहीं करना जरूर। ठीक है, देखो वीव प्रिंट हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड कर रहा हूँ कि तुम डॉग जो वेरिएबल्स है हमारा, वो डॉग हमारा सुपर क्लास है, वहां से इसको ओवरराइड करेगा किसके अंदर, वर्कशेयर के अंदर। तो वर्कशेयर का ओवरराइड करके जो हमारा ये मेथड है, ये ओवरराइड होके हमारा ये मेथड बन गया विफ। और उसके बाद हम हमारा जो डॉग ऑब्जेक्ट है और वेरिएबल्स है, उसके हिसाब से हम से हेलो को कॉल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा विफ प्रिंट होना चाहिए, इसलिए विफ प्रिंट होगा ना। तो लॉजिक समझ में आया? भाई जूम करिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, ये वाला जूम होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है ना, शायद ठीक है। तो इस तरह से इनहेरिट करता है एक क्लास से दूसरे क्लास तक। तो हो गया। और उसके बाद हमारा टॉपिक रहता है, और कौन सा, हाँ ये वाला इंट्रोडक्शन वाला खत्म। कंट्रोल फ्लो। अच्छा, कंट्रोल फ्लो में ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ है बहुत कुछ, पर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो बेसिकली कंट्रोल में हमारा लूप्स होता है, रेंज होता है, क्वालिटी चेकिंग होता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है। हम अब आज के दिन में हम कॉलिंग कर रहे हैं। हमारा व्हेन एक न्यू कीवर्ड है, आई थिंक सबके लिए कॉलिंग में। लूप तो सभी ने किए होंगे, वाइल लूप, फॉर, डू वाइल, फॉर, सभी ने किए होंगे। रेंज भी नए कंसेप्ट है, इसके अंदर हम ये देखेंगे, लूप्स देखेंगे, ओनली फॉर लूप्स देखेंगे, क्योंकि वाइल एंड डू वाइल ऑलमोस्ट सेम लाइक अदर लैंग्वेज, ठीक है। ये भी लिखा है कि डू एंड वाइल कॉन्स्ट्रक्ट वर्क सिमिलरली टू द मोस्ट एज लैंग्वेज, बट इन फॉर लूप थोड़ा अलग है, मैं उसको देखेंगे। उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले वेन क्या करता है कि हमारे हमने स्विच केस किए हैं ना, बहुत सारे स्विच केस किएंगे सी में। तो उसमें क्या होता है कि स्विच वन केस अगर ये हुआ तो इसको प्रिंट करो, अगर केस टू हुआ तो इसको प्रिंट करो। तो इस तरह से इसके अंदर भी एक वेन फंक्शन है। मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करके एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ वेन के लिए। तो वेन क्या करेगा, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने एक सिंपल एक लॉजिक लगाया कि वार डे, डे करके एक हमारा वेरिएबल है, और इसका वैल्यू मैंने इनिशियलाइज 0 करके रखा, ठीक है। चलो चेंज करते हैं। अब हमारा वेन एक्सप्रेशन को हम काम में लाएंगे कि वेन द वैल्यू ऑफ डे, वेन डे क्या हुआ, जब देखो एक इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करता है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, तो नहीं एक्चुअली इसको 1 कर देगा, क्योंकि 0 मैं नहीं रखना चाहता, 1 कर देगा। तो अगर इसका वैल्यू 1 हुआ तो इसको प्रिंट करना है क्या, अगर इसका वैल्यू 1 हुआ तो इसको प्रिंट करना है डे 1 में क्या आता है, संडे या मंडे, से संडे, ठीक है। तो एक्चुअली संडे से स्टार्ट होता है, संडे, ठीक है। इसी तरह से मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं करेंगे। टू, ये डे 3 हो गया हमारा, इसका मंडे कर देते हैं, मंडे, इसका ट्यूसडे, और डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी दबाकर डुप्लीकेट कर सकते हैं। इन पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अच्छा लास्ट कर लेंगे। अच्छा ट्यूसडे, ये हमारा हो गया, वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे, ये हमारा हो गया थर्सडे, टीच थर्सडे, और ये हमारा हो गया फ्राइडे, और ट्यूसडे है ना। और लास्ट में हमारा जो होगा वो है 7। अगर 7 है तो उसमें अगर प्रिंट करना है हमको
अच्छा देखो, मैं ये बोलना भूल गया था कि देखो यहाँ पर प्रिंट करके एक मेथड है, प्रिंट, और है एक प्रिंट एलन, दो टाइप का है ना। तो मैं प्रिंट करूँ तो, हाँ चलो प्रिंट कर, इस बार प्रिंट यूज करते हैं, ठीक है। अ, यहाँ पर कोई आपको ज्यादा मालूम नहीं होगा क्यों प्रिंट यूज किया, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। तो अच्छा, अब एज द लॉजिक हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर डे का वैल्यू 1 है तो हमको संडे प्रिंट करना है, 2 है मंडे, 3 है ट्यूसडे, इस तरह से अगर जितना इसका डे का वैल्यू है वो प्रिंट करना है। अगर डे का वैल्यू 5 है तो मैं क्या प्रिंट करना है, अगर डे का वैल्यू है थर्सडे, देखो 5 है, 5 में हमने थर्सडे को डिक्लेयर किया और वो थर्सडे प्रिंट किया। अगर मान लो कि मैंने इसका वैल्यू 7 कर दिया और ये हमारा सैटरडे को रिटर्न करेगा, अब मैं 9 कर देता हूँ, तो गाइस अब तुम बताओ इसका वैल्यू क्या होने वाला है। अगर मैं इसका वैल्यू 9 करता हूँ तो वैल्यू क्या होने वाला है, तो प्लीज नल। एनीवन। नल। नल, अच्छा, और कोई, अच्छा अगर मैं इसका 9 प्रिंट करना चाहूँ तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं। देखो एक्चुअली ये वैल्यू नल ही है, बट नल कीवर्ड नहीं प्रिंट हुआ, बट नल ही प्रिंट हुआ है एक्चुअली, ठीक है, वैल्यू कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम बचने के लिए थोड़ा एक चीज हम कर सकते हैं कि एल्स, एल्स अगर दूसरा कुछ है, इसका मतलब ये 1 to 7 इसका अंदर नहीं है, तब जाके हम प्रिंट करना है क्या, एलन लगा देते हैं, अननोन, अननोन, ठीक है, ये वाला। तब जाके अगर 9 क्या, अगर 1 to 7 तक अगर कुछ नहीं मिला उसको, वो सिंपली जाके अननोन प्रिंट कर देगा, इस टाइम ये होगा। तो सही, नाल आंसर वो सही था, तो इसमें अननोन प्रिंट हुआ ना। तो अगर इसको भी जूम करता हूँ थोड़ा, हाँ चलो अननोन, ठीक है। तो इस तरह से वेन फंक्शन हमारा काम में आता है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज है इसके अंदर जानने के लिए, तो फिलहाल रहने दो। ये हमारा वेन फंक्शन हो गया। उसके बाद हम आएंगे लूप के अंदर। तो बेसिकली देखो, वाइल एंड वाइल लूप एग्जैक्टली सेम, अदर्स अदर्स के सेम है, ठीक है। तो मैं आज ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, सिंपल एक वाइल फंक्शन लगाए और देखो एज अ कंडीशन इसका सेम है, यहाँ पर भी कंडीशन देना पड़ता है, कुछ जो एग्जीक्यूट करना है, कुछ जो कोड विल एग्जीक्यूट, तो वो ये वाला पार्ट है। और उसके बाद इंक्रीमेंट पार्ट सबसे लास्ट में आता है। सेम ये हमारा डू वाइल हो गया, डू वाइल का भी सेम है। अब पहले करो, कुछ मेथड्स को कॉल करके कुछ प्रिंट करो, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, उसके बाद कंडीशन को चेक करो, ठीक है। डू वाइल ऐसे ही करता है ना, अदर्स लैंग्वेज में हम भी देखे थे कि इस तरह से होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, देखो फंक्शन एक ईट केक करके, ईट अ केक करके एक फंक्शन बनाया, उसका वैल्यू मैंने उसका प्रिंट क्या करेगा, सिंपल ईट अ केक। और इस सेकेंड वाला जो है बेक अ केक, वो प्रिंट करेगा बेक अ केक। तो कितने टाइम प्रिंट करेगा, दोनों वैल्यू पहले टाइम एज केक ईटन एंड केक बेक्ड 0 0 डिफाइन किया है पहले टाइम। उसके बाद जो वाइल हमारा लूप है उसके अंदर एक कंडीशन लगाए कि केक ईटन जो हमारा है वो अगर 0 से लेस देन है, ठीक है, 5 से कम है कि ईटन का वैल्यू, तो ईटा केक प्रिंट करना है। और उसके बाद ईटन का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है। तो ये इसके हिसाब से हमारा जो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, पता है, तो बताओ कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ये वाला वाइल। फोर टाइम्स प्रिंट करेगा ईट अ केक ऐसे करके 4 टाइम्स। अच्छा, हाँ ग्रेट, हाँ, वैसे ही कुछ होगा। देखो 5 टाइम्स हुआ है पर वाइल, लेस देन 5 लिया हुआ था वैल्यू। हाँ क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, ओ जैसे अच्छा 1 अच्छा। 2 3 कर 5 तक,
सो इसलिए, और सेकेंड वाला जो हमारा है, अगर मैं इसको प्रिंट कमेंट आउट करके इसको करता हूँ, तो देख सकते हो कि अच्छा बेका केक 1 टाइम प्रिंट हुआ। मैं लॉजिक नहीं देख, अच्छा देख लेते हो। पहले तो हमारा बेका केक जो हमारा मेथड है उसको कॉल करो। तो पहले इसका काम है कि एक बेका केक प्रिंट करना, वो कर दिया। उसका बाद क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में हमारा केक बेक्ड प्लस इंक्रीमेंट होगा। तो इस केक बेक्ड ये वाला इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, 0 से 1। तब जाके चेक करेगा कि केक बेक्ड जो वैल्यू है, केक बेक्ड दिस 1 इज लेस देन केक इटन, इससे कि छोटा है, इज ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से 1 हो गया और इसका वैल्यू 0 ही है, तो फॉल्स हो गया। इसलिए एक बार ये लूप घुमा और बेका केक प्रिंट किया एक बार। तो देखो इसका पहली कंडीशन इसका फॉल्स हो गया, फिर भी ये पहले लाइन में एक कुछ आउटपुट दे रहा है। यही ट्वेल्व का एक पॉजिटिव थिंग है कि एक बार ये लूप कम करेगा ही करेगा। अगर इसका फॉल्स हो जाए या फिर जो भी हो, इसका एक बार तो ये लूप घूमेगा कि, बट इन वाइल लूप और डू वाइल में ऐसे नहीं होता है। अगर फॉल्स किया तो लूप ही बंद हो जाएगा एक बार लूप से बाहर। बट डू वाइल में ऐसा होता है कि फॉल्स कंडीशन पहले ही का फॉल्स हो, फिर भी वाइल लूप एक बार घूमेगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा वाइल एंड डू वाइल। अगर फॉर लूप थोड़ा, या इसके अंदर बहुत सारे चीज है। मेरा फेवरेट हो गया भाई फॉर लूप कॉर्लिन के अंदर। देखते हैं क्यों, ठीक है। मैं इंटेलिजेंस जाता हूँ, ठीक है। ये वाला वेन सब डेल करता हूँ, उसके बाद मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ। तो गाइज आपके टर्न, ठीक है। अब बताओ कि ये जो प्रिंटलन हमने किया है फॉर के अंदर, जस्ट गेस करो। मैंने अभी फॉर के बारे में कुछ नहीं बोला, बट सिर्फ गेस करो कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो गाइज सभी जवाब दो, आई वन। क्या इसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा क्या? मींस लूप ओवरफ्लो हो जाएगा? अच्छा, इन्फिनिटी होगा। और दूसरा कोई, दूसरा कुछ? ये वाला कब दिया है तुम? 8 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हाँ। एनीथिंग एल्स? इसका वैल्यू क्या होगा? मैं डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या होने वाला है, बट गेस करने को बोल रहा हूँ कि एक बार सोचो, एक टाइम सोचो कि इसका वैल्यू क्या होने हो सकता है। कोई वन, एनीवन? सर यस और यस। हाँ हाँ, क्या? और एक बार बोलो, या फिर लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है। मैं बोल पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग ने आंसर देना, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, चलो। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि किक्स एक वेरिएबल है, इसका टाइप है वैल। सब ऑल टाइम ये नोटिस करना कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। वैल है या फिर वार है, क्योंकि चेंज हो सकता है ना। तो प्रैक्टिस में हो जाएगा कि ये वैल टाइप का एक वेरिएबल है केक। एक लिस्ट ऑफ ये हमारे पास नई चीज है। क्या लिस्ट ऑफ क्या होगा? लिस्ट ऑफ क्या है सर? एक्चुअली लिस्ट ऑफ होता है कि सिंपल टाइप ऑफ एरे कह सकते हो, ठीक है। बट मैं एरे नहीं, बट बोल सकते कि एक साथ इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ये। तो इसके अंदर क्या हो गया, हमारा हमारा जो लिस्ट ऑफ है, इसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर किए, कैरेट, चीज एंड चॉकलेट, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फॉर लूप के अंदर हमने और एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए, केक, ओनली केक, नॉट केक्स, विदाउट एस, केक। इन केक्स, इसका मतलब क्या है? ये जो इसका इसका वेरिएबल, भैया हाँ इसका वैल्यू क्या नल होगा? क्योंकि लिस्ट के अंदर में तो केक कुछ है नहीं, ऐसा कुछ यम इट इज अ केक ऐसे करके नो कुछ है ना, नहीं। एक्चुअली उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कम करेगा, ये जो हमारा वेरिएबल्स है, नॉट इन दिस, हाँ, नॉट इन दिस लिस्ट के ऊपर नहीं कम करेगा ये। एक्चुअली हाँ, इसके ऊपर ही कम करेगा, बट ये एक्चुअली कम करेगा इस वेरिएबल के ऊपर। तो तुम जो बता रहे थे कि ये
केक्स जो वैल्यू है, आई एम सॉरी टू मच डिस्टर्बेंस है भाई। तो एक्चुअली क्या हो गया कि ये केक्स जो हमारा वेरिएबल है, इन केक्स ये हमारा जो केक्स हो गया ना, ये वाला, ये जो हमारा लिस्ट ऑफ है, इसके ऊपर काम करेगा और ये प्रिंट करेगा क्या, यम्मी इट्स अ केक एंड इट्स विच टाइप ऑफ केक। ठीक है, देखो तो क्या करेगा, केक का वैल्यू इनिशियलाइज होता है 0 से, ठीक है, एकदम 0, और इसका भी वैल्यू जो लिस्ट ऑफ का हमारा वैल्यू होता है, ये वाला 0 1, एरे हमने पढ़ा है ना चीज में 1, एंड ये हमारा हो गया 2, 0 1 2। तो केक जो वेरिएबल है हमारा, वो केक ये वाले लिस्ट के ऊपर, ओके हम बाद में देखते हैं। तो केक से ऊपर के लिस्ट के ऊपर काम करेगा। पहले तो ये वाला केक लिस्ट के पहले वैल्यू को रिटर्न करेगा, बिकॉज हियर इज रिटर्न केक। सेकेंड में ये लूप दोबारा घूमेगा, उसके बाद इसका जो सेकेंड वैल्यू है चीज, वो प्रिंट करेगा केक के थ्रू। इसका जो थर्ड वैल्यू है हमारा चॉकलेट, वो हमारा प्रिंट होगा यम्मी इट्स अ चॉकलेट केक। साउंड्स गुड ना? अब बताओ इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ये लाइन एक बार ही प्रिंट होंगे या फिर तीनों बार प्रिंट होंगे विथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ केक, या फिर कुछ अलग प्रिंट होगा? कोई बताओ, अब बताओ तुम लोग कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। थ्री डिफरेंट लाइंस में होगा सर। हाँ, 3 डिफरेंट लाइन में होगा एक्चुअली। टाइप मैंने आई मीन इसका वैल्यू क्या आएगा, आई मीन यहाँ पर भी सिर्फ आई मीन तुम कह रहे हो कि ये तीनों टाइम्स या मीट्स अ कैरेट केक एंड कैरेट केक, ये प्रिंट करेगा, या फिर या कैरेट केक चीज कैरेट केक, चीज केक एंड देन चॉकलेट केक। चॉकलेट केक, हाँ दैट्स द एक्चुअली यही होने वाला है कि एक्चुअली यही प्रिंट करना है। देखो, इट्स अ कैरेट केक, इट्स अ चीजी एंड इट्स अ चॉकलेट। तो भाई मेरा ये मस्त लगता है भाई, ठीक है। और जिसके साथ हम बहुत हाँ एक्चुअली जो मैं नाम नहीं देख सकता किसी का जो इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, बट सीरियसली गुड। तो और एक चीज है, देखना देखोगे, लाइक यहाँ पर जो हमारा, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो केक है हमारा, ये वाला डेल कर देता हूँ। उसके बाद एक सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि नम, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, हम तो फॉर लूप में सी या फिर जावा या फिर भैया दूसरी लैंग्वेज में, हाँ भैया बोलो। भैया हाँ बोल रहे हैं कि आप ये डॉलर इस्तेमाल क्यों किया था, डॉलर इन फ्रंट ऑफ केक। हाँ केक डॉलर, अच्छा हाँ दिखा देते एक बार। डॉलर हमने यूज किए थे क्योंकि कुछ वेरिएबल को एक कोटेशन के अंदर अगर मैं सिर्फ केक लिखता हूँ ना, वो तो एक्चुअली रुक जाओ, मैं पहले से दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर मैं विदाउट डॉलर इसको इसके अंदर लिखता हूँ, तो ये वाला केक जो है वो हमारा एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो तीनों टाइम केक केक करके प्रिंट होगा। देखो ये ऐसा एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ठीक है, नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास तो ये एक वेरिएबल है ना, केक। तो इस वजह से हम इसके आगे अगर डॉलर यूज करें तो कंपाइलर समझ जाता है यार ठीक है भाई, ये कोई नॉर्मल से स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है। इस वजह से अगर अब इसको रन करें तो देखो, इट्स अ कैरेट चीज एंड चॉकलेट, जो अलग अलग वेरिएबल्स है, इसके वैल्यूज है, वो चलते आए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है। तो मैं भैया इसको, हाँ क्या फॉर लूप को चीज से स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब 1 से? यहाँ से हाँ। देखते हैं कैसे स्टेप्स। हाँ स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट इसके ऊपर वन से, हाँ वन से स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल क्या होंगे? ठीक है, वो चीज मैं तुमको दोबारा बाद में बता दो। थोड़ा भूल गया हुआ वाला बात कि एक्चुअली ओके यह में ओके तो भैया हमको ओके। इंक्रीमेंट वाला चीज देना है और वेरिएबल्स। तो
हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक एक छोड़कर वो प्रिंट करना, कि जैसे स्टेप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। वो स्टेप्स इसमें नहीं, वो वाला जो हमारा बाद में देखेंगे उसमें। तो इसमें शायद थोड़ा भूल गया। ठीक है, मैं वो देख लेता हूँ। ठीक है, गुड क्वेश्चन, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो दूसरा जो चीज मैंने दिखाना हुआ तो एक सिंपल एक नाम का प्रिंट करना है। ठीक है, तो सिंपल एक फॉर लूप लगाते हैं इसके ऊपर, और एक नम है, सॉरी, नम इन। अच्छा, हमने देखे कि इन सी और जावा में कि एक रेंज होता है ना। सबने देखा है कि आई इक्वल्स टू 0, सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल्स टू मानो 10, एंड देन प्लस प्लस आई प्लस प्लस, इस तरह से होता है ना सी एंड जावा में। बट इन कॉटलिन इसमें क्या होगा, नम हमारा वेरिएबल्स है, इन इसके बाद हमको रेंज देना पड़ता है कि किस तरह से कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पर खत्म होना है। तो इसके लिए एक छोटा सा चीज लिखना है, सिर्फ वन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद दोनों डॉट, उसके बाद एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके साथ प्रिंट एलन करके सिर्फ नाम को प्रिंट करें, तो देखो भाई 1 से 10 तक प्रिंट होगा, 1 से 10। ठीक है, 1 से 10 प्रिंट हो गया इन इजी वे। बट सिर्फ इस तरह से, बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं तब दिखाने वाला था कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो देखो, अगर मैं इसके ऊपर ये सेमीकोलन लगा के, डॉलर साइन लगा के ये वाला करता हूँ, सिर्फ प्रिंट मैंने लिखा है, हाँ, प्रिंट एलन नहीं, तो देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा। एक ही लाइन में 1 से 10 तक एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो इस वजह से न्यू लाइन में आने के लिए वो हमारा एलन वाला यूज करेंगे, और एज फॉर नॉर्मल एक ही लाइन में प्रिंट होने के लिए हम सिर्फ प्रिंट यूज करेंगे। तो इसके बाद हम एक एम्प्टी स्पेस लगा सकते हैं, तो एक ही लाइन में विद अ वाइट स्पेस प्रिंट हो जाएंगे ये सारी 1 to 10। इस तरह से हो गया हमारा। और एक सबसे फनी चीज देखोगे, मैं वेरिएबल का नाम चेंज नहीं करता। ठीक है, चलो करते हैं। कैर, एक कैर करके हमने लिखा, और इसके साथ भी कैर पास किए। देखो, ये आपको सच में एक बहुत फनी लगेगा। अगर आप लोग बताओ कि अगर मैं इसके साथ, अच्छा तुमने कभी किए हो कि एक फॉर लूप के थ्रू मानो कि 1 to 10 या फिर 20 to 40 या फिर इतने रेंज तक तो हमने इनके साथ किए हैं, बट कभी कैरेक्टर के साथ किए हो कि ए से जेड तक प्रिंट करना है या फिर डी से ई तक प्रिंट करना है? कभी किए हो? एनीवन कभी किए हो इन नो। पाइथन? अच्छा, पाइथन में अच्छा ठीक है, हाँ पाइथन में शायद होता है, मैं उतना फेमिलियर नहीं हूँ पाइथन के साथ। बट इन कॉटलिन, यस, सॉरी, मानो A2 कहाँ तक, मानो जी तक, जी तक प्रिंट करना है, और कैर को प्रिंट करता हूँ। सिंपल, इट्स A to G, इट्स अमेजिंग। अगर मैं, ये थोड़ा अलग है, अगर मैं कैपिटल ए से देखो स्मॉल जे तक करूंगा ना, तो ये पहले कैपिटल लेटर्स को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये सारे जो कैरेक्टर्स है हमारा ये प्रिंट करेगा, उसके बाद स्मॉल A to Z प्रिंट करेगा। तो मैं आई मीन फॉर लूप इज मैंने, आई मीन क्या बोलूँ मैं, फॉर लूप मेरा मैंने फैन हो गया इसका, बहुत कुछ करता है प्रेसिडेंस इसके को साथ। फॉलो करके प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, वही है। बट फॉर लूप आई मीन, तो बहुत बढ़िया है ये वाला। ठीक है, तो आप करना, करते करते यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, खुद से पढ़ना, और इसके बाद अगर करना। रेंज वाला फंक्शन मैंने कर दिया ऐसे। अच्छा, यहाँ पर भी थे, ए से डी प्रिंट करना, एक ब्लैक स्पेस प्रिंट करना, सी वाला जो जेड से डाउन टू, अच्छा डाउन पे कीवर्ड है पीछे जाने के लिए। लाइक मैं अगर मैं दिखा देता हूँ, अगर इन फॉर लूप अगर
पिछले वाला ये वाला फॉलो करे तो लाइक जो नाम का था ना ये वाला, अगर इसके साथ हम ये वाला डाउन टू लगाए, जेड डाउन टू इस ये था, ये हटाकर सिंपल डाउन टू 10 तक, ये वाला मानो कि ये हो गया आपका 15, 15 से 10 तक प्रिंट होना है, ठीक है, पीछे यानी डिक्रीमेंट होगा, तब ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो बोल रहा था स्टेप, अगर स्टेज फॉलो करें कि कितना टाइम छोड़कर, दो अगर मानो कि 2 टाइम छोड़ छोड़कर इसको प्रिंट करना है तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। देखो 15, दो गैप, 1 गैप, 14 से -2, 15 से -13, -2, 10, 11, 10 तक, तो 11 से ज्यादा नहीं हुआ। तो इस तरह से हम रेंज जो यूज करते हैं, रेंज इस तरह बहुत सारे चीज है इसके अंदर, तो सर एक एक करके करना सभी। अच्छा, इसके अंदर ये यही सारी चीज लिखा है कि देखो जो सी में हमने करे कि C++ में इस तरह से इंक्रीमेंट करते थे, और बट कॉटलिन में सिंपल इस तरह से लिखो और आपका वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वालिटी चेकिंग ये सारे चीज एक ये मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, सभी सेम ही है। एक डबल इक्वल्स टू मतलब आपका कंपैरिजन चेक होता है कि हाँ ये इक्वल है और नहीं, और ट्रिपल इक्वल्स टू मतलब इसका टाइप भी चेक होता है। मतलब अगर मानो कि एक वैल्यू है 10, ठीक है, वो सिर्फ अगर डबल इक्वल टू लगाकर चेक करते हो कि ये वैल्यू क्या 10 है, तो अगर 10 इक्वल है तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं है। ट्रिपल इक्वल टू क्या करते हैं, मानो कि अगर आपका दोनों ही वैल्यू सेम है फिर भी आपका टाइप अलग है। देखो इसके अंदर जो हमारा है ऑथर्स सेट ऑफ, इट्स लाइक ऑफ लिस्ट, ठीक है, सेट ऑफ शेक्सपियर जो सारे ऑथर्स का नाम है, हेमिंगवे, ट्वीन ब ट्वाइन करके कुछ प्रोनाउंस हो गए, ये वाला। और ये वाला जो हमारा है राइटर्स, ये हमारा देखो एक अलग से लिखा है, ये वाला ये सामने आ गया, शेक्सपियर जो है हमारा वो हमारा मिडिल में आ गया और ये हमारा लास्ट में आ गया। एलिमेंट हमारा सेम है बट इसका जो ऑर्डर है वो अलग है। इसलिए पहला हमारा जो चीज है ना, जो ऑथर डबल इक्वल्स टू राइटर, इसका मतलब ये होता है कि इसका एलिमेंट वाइज चेक होगा कि सारी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू करना है, अगर एक ही एलिमेंट, अगर मान लो ये इस 20 से चेक करके ट्राई कर दिया, ठीक है, तो देखो दोनों ही फॉल्स, क्योंकि ये चेक करे कि भाई ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। और दूसरा जो केस है हमारा ऑथर्स ट्रिपल इक्वल्स टू राइटर्स, इसका मतलब ये होता है कि आपका जिस तरह से पहला है उसको भी सेम तरह से लिखना होगा, नहीं तो भाई मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। फिर हाई मैंने आई मीन इट्स अ टू मच सिक्योर देन डबल इक्वल्स टू, जिस तरह से उस तरह से लिखना होगा। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन तो लाइक सभी को पता है, इफ एल्स, तो ज्यादा इसके बारे में आज नहीं जानेंगे। इफ एल्स ऐसे एक मैक्स करके एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके ए एंड बी, इफ ए ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी, इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। और अगर हम वो वाले जो लिखते हैं ना इफ कोलन लगा के, वो भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट देकर उसके अंदर ये वाला लाइन प्रिंट करना, उसके बाद एल्स करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ना सिंपल वे इस तरह से तुम कर सकते हो। तो इसका मैक्स का वैल्यू है 99 एंड -42, तो ऑब्वियसली 99 ही प्रिंट करेगा इफ ए रिटर्न करेगा ना। तो इफ एक्सप्रेशन, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल फ्लो। तो सारी चीज हमने देखी कि कैसे क्या चीज होता है इसके अंदर, सारी चीज डिक्लेयर किए, और आई थिंक सब चीज सब लोगों ने समझ गए हो कि कैसे क्या यूज होता है इसका। तो उसके बाद हम एक्चुअल में देखेंगे कि हम जिसके लिए आज ये क्लास लेने वाला है वो है हमारा एंड्रॉयड। तो बेसिकली एंड्रॉयड में सारी चीज एप्लीकेबल कैसा होता है, तो वो सारी चीज हम देखेंगे।
आज तो एक मैं क्वेश्चन उसके बाद देखा था कि जो आईडी को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सिंपली भाई यहाँ से जाकर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन पे डाउनलोड करके करने वक्त जो डाउनलोड आपका पूरा हो गया, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करो, इंस्टॉल तक फिनिश तक जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, फिनिश हो जाएगा। तभी फिर भी कोई दिक्कत हो इंस्टॉल करने में, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है अवेलेबल है, वो चेक कर सकते हो, या फिर गूगल्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो ये मैं बस बोलना था, तो हो गया। आई थिंक डाउट सॉल्व हो गया आपका। अच्छा, जो हमारा लास्ट थिंग्स है, जो हम जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो है एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्स। ये वाला है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एक चीज एंड्रॉयड के लिए मैं बोलना चाहता हूँ एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट, आपका जो सिस्टम का जो सेटअप है थोड़ा कम है, या आई मीन इज अ बेसिक टाइप का है, तो भी कर सकते हैं, बट आपका पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही एक हेवी सॉफ्टवेयर होता है, और इसका मतलब आप देख सकते हो मेरा एज i3 9th जनरेशन का प्रोसेसर है विद 8 GB रैम, बट आप देख सकते हैं कि कितना इसका लैगी कर देता है सिस्टम्स को। या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी थोड़ा लैगी होता है, बट मेरा केस में थोड़ा फर्स्ट चलता है। बट अगर तो अब देखेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो ये भी हमारा पास इंस्टॉल है, तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता, क्योंकि सिंपली लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो सिंपली ये वाला लिखना है। और पहला जो ऑप्शन नहीं, ये वाला लिंक है ना हमारा developer.android.com, ये वाला जो लिंक है, यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके एक एंड्रॉयड डेवलपर एक ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लॉन्च कर दिया जाएगा, ये वाला। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन जो हमारा पास, मेरे पास भी है 20, हाँ ये वाला मेरे पास 21 आ गया। Okay, sorry to interrupt you, Niranjan. One thing that I would like to add, as you were saying कि Android Studio थोड़ा सा difficult होता है operate करना because of how heavy it is as a software. तो थोड़ा problem होता है and it is not fast. So very similar to that, you can also do Android development in IntelliJ as well. So I personally use IntelliJ for Android development, and the interface is exactly similar to Android Studio, so you won't even face any problem even if you are following a tutorial that is using Android Studio. So IntelliJ पे भी किया जा सकता है Android development, just in case Android Studio is not working for you. But since Android Studio is the official IDE for Android development, so I would encourage you all to learn Android development in Android Studio. But if by chance this does not work out, then you definitely have IntelliJ, which works exactly similar. Thank you. Niranjan, you can continue. थैंक यू। हाँ, तो मैं इंटेलिजेंट पर्सनली यूज नहीं करता, तो मेरा उतना आइडिया नहीं है। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद एंड्रॉयड स्टूडियो। बेसिकली सिंपल सी चीज, यहाँ पर भी डाउनलोड विद एंड्रॉयड, कुछ कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा यहाँ से, और आपका जो लिंक ओपन हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से सिंपल ये वाला तो हो गया, बट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपका अगर दिखाना चाहता हूँ वो है आपका ये वाला सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर आपका विंडोज प्लेटफॉर्म है तो आपका ये सारे रिक्वायरमेंट आपका आना जरूरी है, तो होगा। अगर इंटेलिजेंट, जैसे नियति ने बोला कि इंटेलिजेंट भी हो सकता है, तो ट्राई करना। मैंने ट्राई नहीं किए, अगर आपके होता है तो इस तरह से मेरा सिमिलरली ऐसे ही है, मेरा जो सिस्टम है मेरा। तो ये थोड़ा अब देख लेना, ठीक है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में 8 GB प्रोसेसर होना, उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। आपके डिस्क में 8 GB अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, फॉर IDE, SDK एंड एमुलेटर। स्क्रीन का रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए। स्क्रीन का रेजोल्यूशन हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा लैग होता है। सिंपल, तो वहाँ से आपका इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका इंस्टॉल हो जाएगा बस। तो हो गया हमारा एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम एक फॉर अ न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट
हम जाएंगे फाइल्स टैब में, उसके बाद न्यू, एंड उसके बाद न्यू न्यू करके न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। इस तरह बहुत बहुत कुछ चीज है कि कैसे कैसे होगा। अगर आपको एक मैप चाहिए आपके ऐप के अंदर, तो आप इस तरह से एक इंटरफेस चूज कर सकते हो, या फिर इस तरह से फुल स्क्रीन वाला, जो सारे चूज करना है कर सकते हो। बट मैं एज अ स्टार्ट प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद से करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी चूज करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का जो नेम है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कुछ लाइक ट्यूटोरियल, लाइक दैट, ट्यूटोरियल करके होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आपका अब आएगा आपका पैकेज नेम। ये क्या होता है, अगर आप एक ऑफिशियल या फिर एक इंडस्ट्री के लिए कोई ऐप बिल्ड करना कर रहे हो, तब ये बहुत काम में आता है, क्योंकि ये यूनिक होना जरूरी है। अब अगर जब अपना आपका ऐप प्ले स्टोर में पब्लिश करने जाओगे, तो ये पैकेज नेम आपके यूनिक होना जरूरी है। इसलिए मेरा केस में तो एग्जाम्पल डॉट ये वाला चल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप भी आपका खुद के केस में यूज करने वाला हो, तो ये वाला आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन इन प्रोफेशनल केस ये आपका क्या है, यूनिक होना जरूरी है, ठीक है। ये आपका सेफ लोकेशन है, कहाँ पर ये लोकेशन स्टोर होने वाला है। और आपका लैंग्वेज, दो टाइप का लैंग्वेज है, जावा एंड कॉटलिन। हियर आई एम यूजिंग कॉटलिन। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपका एंड्रॉयड वर्जन। तो आप देख सकते हो कि आपका इस तरह से लेटेस्ट वर्जन था, जैसे कि एस, हमारा 12 वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। तो एस तक हमारा पास सपोर्ट है एंड्रॉयड स्टूडियो में। बट यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं एस चूज करूँ, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लिए हो रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ डिवाइस। मतलब अगर आपका ऐप एंड्रॉयड 12 पे डिवाइस के ऊपर, डिवाइस के लिए हो रहा है, आप मेक कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, 1% से भी कम, क्योंकि एंड्रॉयड 12 सभी सभी लॉन्च हुआ है। इसके लिए सभी के पास एंड्रॉयड 12 नहीं है, तो सभी के फोन में एंड्रॉयड ये वाला ऐप जो आप लॉन्च करने वाला हो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे मिनिमम या फिर थोड़ा बेसिक जो एंड्रॉयड लॉलीपॉप कर सकते हो, देखो यहाँ पर 98% डिवाइस में आपका रन हो जाएगा। तो मैक्सिमम तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, वो चाहेगा कि खुद का ऐप मैक्सिमम लोगों के पास जाए। तो कभी नहीं चाहता कि लेस देन 1% के ऐप में फोन में चले। तो इसलिए लॉलीपॉप या फिर किट कैट जो भी हो, मैं लॉलीपॉप एज अ डिफॉल्ट चूज कर लेता हूँ 98%। और उसके बाद मुझे फिनिश करना है। अब मुझे वेट करना है बस, ठीक है। ये मेरा हो गया। देख सकते हो कुछ क्लिक्स फ्लिक्स काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता है। और चलो, अब यहाँ पर कुछ लोडिंग्स वगैरह होगा, फाइल्स फाइल्स डाउनलोड होगा। अब देख सकते हो इसके ऊपर जो ब्रिल गैडल हो रहा है एकदम बीच में, ये वाला। तो थोड़ा टाइम दो इसको आ, सारे चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो थोड़ा टाइम मांगता हूँ भाई, कुछ कर नहीं सकता। तो 5 मिनट रेस्ट भी ले लो तुम लोगों ने, मैं भी ले लिया। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो सेटअप है पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दो हमारा जो फाइल फोल्डर है, एक ऐप और दूसरा जो ग्रेडल है, ये आ गया। और यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो चीज है, इसमें ही हम करने वाला है। तो देख सकते हो फिर भी ये एनालाइजिंग कर रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है या फिर नहीं। इसको करने देते हैं, पूरा काम उसका
इसका सब हो जाने के बाद ही स्टार्ट करना, क्योंकि तब तक वो लेगेसी में चलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड टूर। आज कोई ऐप नहीं बनाएंगे, सिर्फ कहाँ पर क्या काम होता है वो देखेंगे। कल से आई मीन नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, शायद कल ही होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक ऐप को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि हमारे पास देखो दो एक्टिविटी पहले से ओपन हो रखे। एक है हमारा मेन एक्टिविटी, जो हमारा मेन क्लास है, ये हमारा एक्टिविटी पेज है। और सेकेंड है हमारा एक्सएमएल फाइल, जिसमें हम लोग हमारा यूआई को एडिट कर सकते हैं कि कहाँ पर एक बटन होना चाहिए, कहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए, कहाँ पर एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है टेक्स्ट एक्सएमएल, जो हमारा है एक्टिविटी मेन एक्सएमएल, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद से ओपन करना चाहूंगा कि कहाँ से एक्चुअली में ओपन होता है, ठीक है। तो पहले एक काम देखो कि यहाँ पर मेरे पास इस एंड्रॉयड के फोल्डर में इससे बहुत सारी चीजें, बट मैं सिलेक्टेड एंड्रॉयड, एंड देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फोल्डर है, ऐप एंड ग्रेजुअल स्क्रिप्ट। तो ऐप के अंदर तीनों फोल्डर है, मैनिफेस्ट, एक जावा, एक रिसोर्स। रेस मतलब रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स फोल्डर है। तो पहले हम देखेंगे मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के अंदर एक एक्सएमएल फाइल है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर देख सकते हो कि एक कुछ लिखा है, ठीक है। किसी कुछ जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ कुछ लिखा है इसके अंदर। इसका काम क्या है? इसका काम है कि कुछ एक्टिविटीज को लॉन्च करना। मतलब अगर आप लोगों ने देखा है कि सभी ने देखा है कि अगर आपने व्हाट्सएप या फिर कुछ ऐप पहली टाइम नहीं, मतलब जब भी टाइम ओपन करते हो, एक व्हाट्सएप के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, तब एक पहला ग्रीन से स्क्रीन आता है, उसके अंदर एक व्हाट्सएप का लोगो आता है और नीचे में आपका मेटा लिखा रहता है। हम राइट ना? तो एक्चुअली उस केस में, हाँ, तो वही हमारा एक लॉन्चिंग एक्टिविटी हो गया कि उस लोगों ने इस तरह से सेट किया है कि वो एक्टिविटी, वो हमें एक एक करके एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी 5 या 10 सेकेंड तक शो हो, उसके बाद हमारा वो शिफ्ट हो जाए मेन एक्टिविटी में, जो हमारे एक्चुअल में, जहाँ पर एक्चुअल में काम होगा। जैसे कि व्हाट्सएप में ही हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज है। एक्टिविटी का मतलब हमारे एक एक पेज, जितने सारे हमारे पास, हम जितने ऐप यूज करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर जितना मिंत्रा हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हमारा ऐप यूज करते हैं, एक एक क्लिक करने से एक एक पेज ओपन होना, वो हमारा एक एक्टिविटी हो गया। एक पेज से दूसरे पेज में जाना, ये हमारा एक्शन हो गया। इसको बोलते हैं एक्शन। ये आप छोटे छोटे नोट करके भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में अगर मैं दूसरा वीडियो में एक्टिविटी यूज करूँ तो आपके समझ में थोड़ा लेट होगा कि एक्टिविटी क्या था, लॉन्च क्या था, तो एक्शन क्या था। तो आप लिख सकते हो, थोड़ा नोट करके रख सकते हो कि हाँ, एक्टिविटी ये, ठीक है। तो एक्टिविटी जितना पेज अपने दिखाओगे, तो वो एक एक्टिविटी हो सकता है। जैसे कि आपका चैट का एक एक्टिविटी हो गया, स्टेटस का एक एक्टिविटी पूरा पेज हो गया, उसके बाद कॉल का, जो सारे सारे चीजें अगर ऊपर देखे होंगे तो तीनों बटन है, जो तीनों डॉट्स डॉट्स रहता है, उसके ऊपर क्लिक करके कुछ सेटिंग्स वगैरह ओपन किए, तो वो एक अलग एक्टिविटी हो गया। तो इस तरह से एक एक करके रहते हैं। बट ये जो हमारा मैनिफेस्ट हो गया, मैनिफेस्ट काम क्या करते हैं, किसको पहले लॉन्च करना है। तो ये पर देख सकते हो कि ये जो एक्टिविटी है, ये लॉन्च करेगा किसको, मेन डॉट मेन एक्टिविटी को लॉन्च करेगा, जो हमारा मेन फाइल है उसको लॉन्च करेगा। तो हम यहाँ से चेंज करके हमारा जो डिजायर एक्टिविटी है उसको भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैनिफेस्ट काम करता है, और ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल आपका स्टार्ट है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करें और खुद से खुद सीखे। और मैं भी खुद से सीख रहा था तो ऑलरेडी, तो एक एक करके जानते। तो उसके बाद हम जाएंगे जावा फोल्डर में। जावा फोल्डर के अंदर तीनों और फोल्डर है, बट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर, सभी सेम है, बट जो हमारे काम में आएगा वो हमारा पहला, जो कॉम एग्जाम्पल डॉट, जो हमारा पैकेज नेम हम सेट किए थे, जो ऑटोमेटिकली सेट हो रहा था, मैंने बोला कि कंपनी के लिए डिफर करता है, तो वो वाला पैकेज, उसके अंदर हमारा ये मेन एक्टिविटी रहता है।
तो मेन एक्टिविटी यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये हमारा मेन एक्टिविटी ओपन हो गया। XML को काट देता हो। तो ये हम बात नहीं देखेंगे कि इसमें क्या होता है नहीं होता है, उसको बात छोड़ो। अब इम्पोर्टेंट है रिसोर्स फोल्डर, रेस फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर में क्या होता है, 4 अलग फोल्डर है। एक ड्राइवेबल, दूसरा है लेआउट, तीसरा मीप मैप एंड चौथा है वैल्यूज। तो एक एक करके देखेंगे कि ड्राइवेबल क्या करता है। ड्राइवेबल है एक इस तरह ऐसी फोल्डर जिसमें अगर आपका ऐप इस तरह से है कि कुछ मानो कुछ इमेजेस है, कुछ वेक्टर्स है। वेक्टर्स मतलब एसेट्स, मतलब आइकॉन हो गया, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, कुछ दूसरा कुछ टाइप ऑफ PDF फाइल्स हो गया, दूसरा जो आपका यूज होने वाला है आपका ऐप के अंदर, तो वो आपका रहेगा ये ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर। ठीक है, जो भी चीज आप यूज करने वाले हो आपके ऐप के अंदर, इमेज वगैरह, तो वो यूज होंगे, पेस्ट होना चाहिए, रहना चाहिए इस ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर। तभी एंड्रॉयड समझ जाएगा कि हाँ ये इस तरह से इसको यूज करना है। ठीक है, तो महात्मन एकदम एक सेटअप है कि अब भी आपके लिए भी ये रीडेबल हो सकता है कि भाई मेरा तो ये इमेज इस ड्राइवेबल फोल्डर में ही होगा। इस तरह से नहीं कि अब चारी तरफ आपका इमेज वगैरह रखो। तो एक इजी एंड क्लीन सेटअप है। तो आपका ड्राइवेबल हो गया। आपका लेआउट, लेआउट में हमारा मेन डॉट एक्टिविटी XML जो हमारा है, ये वाला पेज हमारा इसके अंदर आता है। तो हम जितने एक्टिविटी को बनाएंगे, जितने अलग अलग एक्टिविटी को डिजाइन करेंगे, सब रहना चाहिए लेआउट फोल्डर के अंदर। तो इसलिए ये वाला फोल्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेआउट फोल्डर। थर्ड है हमारा मिप मैप। मिप मैप ऐसी चीज है आपका जो फोन में कुछ जो भी है आपका फोन में एप्स है, उसका जो आइकॉन है ना, जिसका जो आइकॉन है, आइकॉन का जो साइज है, देख सकते हो कि कुछ राउंडेड हो सकता है, कुछ स्क्वायर हो सकता है विथ राउंडेड कॉर्नर, वो इसके अंदर डिफाइन हो सकता है। लाइक मैं एक ओपन करके दिखा देता हूँ कि देखो एक IC लॉन्चर करके, मैंने कि एक मैंने ओपन किया, देखो एक इमेज है विथ राउंडेड कॉर्नर। ठीक है, एक स्क्वायर नहीं है बट एक राउंडेड कॉर्नर के टाइप से एक इमेज है। ये आपका आइकॉन हो गया, ये आपका आइकॉन। ठीक है, जो आप लॉन्च करेंगे, कुछ क्लिक करने से लॉन्च होगा तो ये आपका आइकॉन होगा। और एक आइकन के टाइप होता है, वो है हमारा राउंड, जो है हमारा ये वाला। देखो ये राउंड टाइप का है, और सिमिलरली ये वाला राउंड है। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो मीप मैप है इस तरह से सेट है कि इसके अंदर आपका जो आइकॉन है, एक आइकॉन बनाकर इसके अंदर डाल दो, और वो सारे वैल्यूज के अंदर वो खुद ही टूट जाएगा। एक्चुअली खुद ही नहीं, आपको अलग से भी दे सकता है, क्योंकि अब कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर आपका एक इमेज आप दे सकते हो, वो आपका एंड्रॉयड के हिसाब से आपका जो यहाँ पर देखा ना, इस तरह से फोल्डर जो इसका साइज लिखा है कि HDPI MDPI, इस तरह से साइज है इसका, उस हिसाब से आपको कुछ बना के वो दे देगा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे जो भी हो। और चौथा और लास्ट आखिरी चीज जो होता है वो हमारा वैल्यू। वैल्यू के अंदर 2 फाइल्स होता है, एक colors.xml, थर्ड चीज है हमारा string.xml, और एक फोल्डर है वो थीम। थीम बाद में देखेंगे। अगर अब आते हैं कलर्स में। सिंपल, कलर्स क्या करता है, आपका ऐप में जितना कलर आप यूज करना चाहते हो, जितना रंग रंग बेरंग आप एक ऐप बनाए, जितना रंग आप यूज करना चाहते हो यूज करो, बट सब कलर ये इस वाले XML के अंदर रहना चाहिए। कभी जरा घटा के यहाँ इधर उधर मत छिड़ा के रखिए। एक से सेपरेट जगह उन्होंने दी रखी है कि इसके अंदर रखो, आपको भी आसान होगा और हमें भी आसान होगा कि यूज करने में। तो इस तरह से रख सकते हो। स्ट्रिंग और XML भी हमारा सेम चीज है। आपके ऐप में जितना इस तरह की टेक्स्ट है, जितना आपके बटन का अगर नेम हो गया, कि मतलब सेंड बटन हो गया, या फिर आपका टाइटल, हेडिंग्स, बायो, जो भी आपका ऐप में है, उसका जो टेक्स्ट है वो आपका इसमें स्टोर करके रखो। बस ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का काम। फिर आएंगे थीम के अंदर। थीम क्या करता है, 2 टाइप्स का थीम है। एक है हमारा डे के लिए,
और दूसरा हमारा है नाइट के लिए। अगर हम इस ऐप को डे में चलाते हैं तो एक कुछ अलग दिखेगा, अगर नाइट में चलाते हैं कुछ अलग दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर इस ये वाले जो कलर्स है ना, इस एकदम लेफ्ट साइड में ये वाला कलर देखना कि मैं नाइट में हूँ, नाइट वाले थीम्स में हूँ। अगर मैं डे वाले में शिफ्ट करूंगा तो कुछ कलर चेंज हो गए इसके अंदर। देख सकते हो कि ये वाला जो ब्लैक है वो वाइट हो जा रहा है और इसके अंदर ब्लैक हो जा रहा है, और इसका कलर कुछ डिफरेंस हो रहा है, आप देख सकते हो। तो उसी हिसाब से आपका जो डे का आपका जो डे का जो एक कलर का जो थीम रहता है और आपका नाइट का जो थीम वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपको खुद से नहीं लिख रहा है कि डे के लिए अपना ब्लैक होना है, वाइट होना है, नाइट के लिए डे ब्लैक होना है, इस तरह से नहीं लिखता है। बट एंड्रॉइड हमारे लिए सब कुछ कर देता है पहले से। तो ये हमारा हो गया पहला फोल्डर ऐप। एंड सेकेंड थिंग हम देखेंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब खूब एडवांस या कॉम्प्लेक्स आप ऐप बनाओगे तो ये आप यूज करेंगे, ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दो थिंग्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है हमारा ये ग्रेडल डॉट, एक सेकंड इसको क्लोज कर देता हूँ पहले। ये हमारा है प्रोजेक्ट टाइप और दूसरा है हमारा ऐप टाइप। ठीक है, ये वाला जो हमारा पहले दिखाना ये प्रोजेक्ट टाइप है इसका, और इसका हमारा ऐप हो गया। तो दूसरा दूसरों का कम अलग है। ये क्या करता है, सिर्फ अब ये दोनों सेम कम करता है, थोड़ा अलग। बट जितना सारा ऐप का अगर कुछ डिपेंडेंसीज यूज करना है या फिर कोई प्लगइन्स यूज करना है, दूसरा थर्ड पार्टी कुछ यूज करना है, तब आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को बताना पड़ेगा कि मैं ये इंटरनेट के थ्रू या फिर कुछ अलग यूज करने वाला हूँ, मुझे अलाउ करो। ये दो थिंग्स सेम थिंग्स करता है। जो डिपेंडेंसीज आप इसके अंदर एंटर बार बार के आप ऐड कर सकते हो, प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, आपका जो एसडीके वर्जन है ये आपका अवेलेबल होता है। तो एक फुल जस्ट एक फाइल है, सारी चीज जानने की जरूरत नहीं है। बट काम क्या करता है इसके अंदर, हम डिपेंडेंसीज प्लगइन्स जो हमारा क्लास पाथ हो गया, सब चीज हम इसके अंदर क्लास पाथ हम ऐड कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल हो गया, जो सारी चीजें ये दोनों फाइल्स के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, और तभी हमारा जो डिजायर जो चाहते हैं वो हो सकता है। तो बेसिकली ये था हमारा एक एंड्रॉइड स्टूडियो का टूर। और एक चीज एक इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर पहले आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, आपका पहला चीज, और सेकेंड थिंग आपका एक चीज लगेगा, वो एक आपका फोन, आपका जो फिजिकल फोन जो आपके हाथ में जो है वो फोन आप यूज कर सकते हो। और एक एमुलेटर आता है एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ही, अगर वो भी आप यूज कर सकते हो एज ए एमुलेटर। मतलब आपका जो डिजाइन कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वो आप बार बार रन करके देख सकते हो कि आपका ऐप कैसा हो रहा है। मेरी तरफ से देखो ये जो हमारा ये एक एमुलेटर हो गया, मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो अगर किसी को ये वाला इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपका जो ये टैब है इसके अंदर एवीडे मैनेजर है इसके अंदर, तो इस पर क्लिक करने से एक पेज ओपन होगा। मेरे पास ये वाला अवेलेबल है तो ये मुझे दिखा रहा है। और अगर आपके पास अगर आप न्यू इंस्टॉल करे हो एंड्रॉइड स्टूडियो तो शायद आपके पास नहीं होना ही ज्यादा होगा, तब जाके क्रिएट वर्चुअल डिवाइस कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपली आपका जो वर्जन है या फिर कौन सा फोन मेन एमुलेटर आप चूज करना चाहते हो, पिक्सेल्स का है, नेक्सस का है, तो बहुत सारे है इसके अंदर। मैं रिकमेंड करूँ पिक्सल, सेफ है, मैं इजी है, ठीक है। मतलब कभी कुछ भी चूज कर सकते हो, बट मैं पिक्सल किया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद चूज करके सिंपल नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट 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 करके जितना सारा नेक्स्ट है, मैं इंस्टॉल नहीं करना है मुझे। तो इसके बाद ये सारी चीज आपको डाउनलोड करना है कि आपका कौन सा वर्जन में आपका चाहिए। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना, मेरे भी शायद आ रही है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर क्लिक करने से आपका पूरा पैकेज डाउनलोड होगा। आर के लिए जितना सारे पैकेज है, जितना सारे रिक्वायर्ड थिंग्स है, आपका डाउनलोड होगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद सिंपल फिनिश करना, आपका जो ये एमुलेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा।
ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको काट देता हूँ। अगर इसके लिए कोई क्वेरीज है हमारे ग्रुप वगैरह में पूछ सकते हो, कि मैं दोबारा दिखा दूंगा कि पहले एवीडी मैनेजर, जो हमारे ग्रेडल के बगल में एवीडी मैनेजर है, वहां से क्लिक करके बाकी सारा प्रोसेस। ठीक है, हो गया। तो आज का हमारा लास्ट जो थिंग है कि हमारा जो पहला जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो एक हेलो वर्ल्ड ऐप। कुछ फंक्शनलिटीज नहीं है इसका, बट बट एज अ एंड्रॉयड डेवलपर सबको मैंने एज अ कॉडलिन जब सीखे हो, प्रोग्रामिंग किए हो, तो एंड्रॉयड बनाने आए हो, तो हेलो वर्ल्ड का आपका जो थिंग्स है हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं आपका एमुलेटर इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो मैं इस तरह से रन करना ज़्यादा बेहतर समझ। तो प्रोजेक्ट आपको क्रॉस करके, हाँ, इसके ऊपर ऐसे रखकर ये हटो, और यहाँ से जो हमारा प्ले बटन है, यहाँ से क्लिक करने से पहले ये तो आपका ग्रेडल बिल्ड होगा। ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये भी टाइम लेता है बहुत ज़्यादा, तो टाइम दो। और जो भी है इसका, तो इसका बिल्ड होगा, बहुत सारी चीज़ होता है इसके अंदर, इंस्टॉल होगा, लॉन्च होगा, डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करके फिर इसके बाद लॉन्च करेगा। ठीक है, तो सिर्फ देखते रहो, ये वाला जो लाइन है ना, इसको कंप्लीट होने तक वेट करो। अभी रनिंग हो रहा है इसका, तो इसको होने दो। अगर, हाँ, अगर एमुलेटर आप इंस्टॉल करना नहीं चाहते हो, अगर आपका एमुलेटर नहीं चाहते हो कि आप एमुलेटर यूज करें, तो एंड्रॉयड ने आपको और एक सुविधा दे रखी है कि सिंपल आप आपका फोन का सेटिंग्स ओपन करके देखो, इंस्टॉल हो गया और लॉन्चिंग भी हो गया। तो देख सकते हो कि लॉन्च हो गया, तो लॉन्च हो गया। आप देख सकते हो कि आई थिंक इट्स बहुत छोटा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, दिखा जा रहा है इसके अंदर सभी हेलो वर्ल्ड। इट इज शोन, इज इट शोन? After zooming, it is shown. हाँ, बट छोटा है, इसका साइज भी छोटा है, इसलिए ये छोटा दिख रहा है। तो ठीक है, ये बात देख लेते हैं इसके अंदर से। हमको इसके अंदर जो हमारा, हम मैं ये नहीं दिखाना चाहता, बट फिर भी जो आपने बोला कि ठीक है चलो इसको, नहीं 20 नहीं, चलो इतना 30 एसपी कर देते हैं, थोड़ा बढ़ गया, फिर से अप्लाई करते हैं, और थोड़ा टाइम लो, वो होगा। तो अब ठीक है ना, अब थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो इस तरह से हमने सिंपली क्या किया, टेक्स्ट का साइज जो है वो हम चेंज कर दिए, और इसका वो बड़ा हो गया। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था, तो ये, तो सबको कंग्रेचुलेशन, जो अगर मेरे साथ कोई ऐप बनाए मैं मेरे साथ साथ, तो उसका लिए बहुत कंग्रेचुलेशन कि आप लाइफ का, शायद आप लाइफ का पहली ऐप बना रहे हो हेलो वर्ल्ड टाइप का। तो लाइफ में बहुत आगे जाओ। जो भी हो, हाँ, जो मैं चीज बोल रहा था कि अगर आप एमुलेटर यूज नहीं करना चाहते हो, तो क्या करना है, आपका जो फोन है, मैं क्या, ये वाला चीज तो मैंने दिखा दिया। तो एक चीज, एक सेकेंड में, अच्छा, आपका फोन में आप सेटिंग्स में जाकर आप सर्च कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन। उसके बाद मैं एक बार कर लेता हूँ, करके देख लेता हूँ कि कैसे स्टेप्स आपको बोलना जरूरी है ना। आपका खुद का फोन में भी आप आपका ऐप, ये जो आप ऐप बना रहे हो ना, वो आप खुद का फोन में भी हो इंस्टॉल करके देख सकते हो कि कैसे होता है। तो सिंपली आपका सेटिंग्स में जाओ, पहले ये लिख के रखो, क्योंकि ये हो सकता है भूल जाओ स्टेप्स गुलो। सो पहले लिखो कि सेटिंग्स, उसके बाद सेटिंग में शायद आपके सर्च ऑप्शन होगा, तो सिर्फ सर्च करो कि डेवलपर मोड। या फिर डेवलपर ऑप्शन होगा शायद आपके फोन में। तो डेवलपर ऑप्शन में जाके नीच में एक ऑप्शन मिलेगा यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, एक यूएसबी डिबगिंग आपके फोन में शायद मिलेगा, शायद नहीं, सभी फोन में आता है।
सिंपली उसको ऑन करो। और उसके पहले, ये ऑन करने के पहले आपका जो फोन से कनेक्टेड रहना चाहिए आपका सिस्टम, एक यूएसबी के थ्रू आपका सिस्टम कनेक्टेड रहना चाहिए, तभी ये होगा। तो तभी वो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो डिटेक्ट कर पाएंगे कि एंड्रॉयड से आप एमुलेटर में नहीं, आपका खुद का फिजिकल डिवाइस में रन करना चाहते हो। तो सिंपली यूएसबी डिकपिंग करके अगर जब भी करते हो तो आपका फोन में परमिशन मांगेगा कि हाँ तुम एंड्रॉयड के लिए परमिशन देते हो कि इसके यूज करे। तुम यस करा या अलाउ करो। उसके बाद आपका जो फोन में ही रियल टाइम आपका दिख जाएगा कि कैसे आप यूज कर सकते हो, कि आपका कैसे ऐप बन रहा है, ठीक है, विदाउट यूजिंग एमुलेटर। बट इन माई केस मैं आई एम यूजिंग एमुलेटर फिर भी। तो ये आपका हेलो वर्ल्ड ऐप हो गया। और इसी तरह आपका जो आज का सेशन खत्म। बहुत सारे चीज हमने देखे इसके ऊपर, बहुत सारे काम किए। तो आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हो। अगर मुझे भी आंसर नहीं मालूम तो मैं नेक्स्ट सेशंस में वो जान के थोड़ा बता दूंगा। और अगर है तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। निहारी। Yeah, so it was a wonderful session. So, if you have any doubts, any one of you, you can just hop in and share with us so that we can try to fix it as much as possible. भैया, why we are using Kotlin, why not Flutter? देखो, फ्लैटर तो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटवर्क है। तो उसमें देखो, वो आपका ओपिनियन, आपका चॉइस है, आप कौन सा। Niranjan, I would like to take this question, हाँ हाँ। and in fact, I actually saw this question in the chat as well. So, when we are talking about Flutter and Kotlin, one thing that you need to know about Flutter and Kotlin, both of them, is that Flutter is a framework, and it is a framework of Dart language. So, to work with Flutter, you need to learn Dart. But herein we are talking about Kotlin. Kotlin is a programming language. Okay, so what happens is that both of them are cross platform. That is, an app that is built using Flutter as well as Kotlin can be used both in Android as well as iOS. So I think that is an good reason to learn Flutter and Kotlin. As Niranjan said, that it is a taste. It depends on most of the time on your taste on whether you want to work with Flutter or Kotlin. Since this Android Study Jam is something that has been provided by Google, and as I said, that we will also get a free course on that. So, what will happen is that we will be working with Kotlin in this Android Study Jam, but it does not matter. If you want to learn Android development using Flutter, you can do that as well. Now, if you want to learn about advantages of Flutter or why one should use Kotlin over Flutter or why Flutter is better than Kotlin, then there are many reasons to do so. One of those reasons why I would say that Kotlin is much more preferable is because the support for Kotlin is much more. The resources to learn Kotlin is way more than Flutter, and also the apps that are written in Flutter are of relatively larger size. So one of the best things about Kotlin is that the code is very clean and concise. And to be honest, someone who has been programming for a while now, that is for years, I think it's been around 6 years I have been programming, and I feel that when I have to choose between a language that is complicated and a language that has clear and cleaner code, then I would definitely go for Kotlin over there. So this is the biggest advantage between Flutter and Kotlin, is that Flutter's apps are much more relatively bigger in size as compared to Kotlin. So now you may get a good idea, but nonetheless, you can start with any of the two. Thank you. Okay, so is there any other question on Android study jams or anything that Niranjan has discussed today? Yeah, even I had one more question about like packages name. Can we choose a desirable package name? Like there must be anything which has been chosen before Yes, than me. yes. So So the thing about package name is that when we try to get a sense of naming conventions in programming, this happens that
one can choose what they want to do, but obviously there are some naming conventions that we need to follow to make sure that our apps are crisp and clean. And one of those naming convention when we are talking about packages is that it should be of your company name. So if you check the Play Store and check out any of the this Instagram or Facebook's package name, you would find that it is mostly com.instagram.something. So it would be something very similar to this. So it is mostly based on the company name. But since we are students, we don't have a company right now, then you can use anything that you like. Is there any other question? So I think we are done with the questions now. There's one thing that I have, in fact, shared with you guys is that we will get a chance to earn digital badges and certificates. So since Niranjan is the Android facilitator, I would, like Niranjan to take this and explain to us how we can earn badges, that is digital badges, and tell us about the free course by Google that one can follow to learn Android development with Kotlin. Along with that, also tell us how to get certificate. Okay, Nihari. So, हाँ ठीक है, तो एक्चुअली क्या करना है? सो हाँ, तो बेसिकली अगर आपको जो एंड्रॉयड का फ्री कोर्स है वो फ्री में करना है या फिर डिजिटल जो बैचेस है उसको अर्न करना है, तो बेसिकली आपका एंड्रॉयड की तरफ से एक फ्री कोर्स है यूजिंग कॉटलिन। तो बेसिकली आपको टाइप करना है कि एंड्रॉयड डेवलपर इन एनी ब्राउजर and then choose this guide, actually developer.android.com, and this open this link, and there is actual the things। यहाँ से आपका इस वाले पेज पे आपका रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, इस पे कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो ये वाला पेज है इसके से आपका व्यू एंड्रॉयड कोर्सेज में जाना है, ये वाला। इसमें ट्रेनिंग है, देखो ट्रेनिंग करके पेज ओपन हुआ। उसके बाद देखो एक न्यू एंड्रॉयड बेसिक इन कॉटलिन, और उसके बाद दो है और एक है जावा के। तो बट हम करेंगे कॉटलिन के लिए, तो सिंपली स्टार्ट कोर्सेज करेंगे और देख सकते हो कि ये वाला जो पेज है ये ओपन हो, ये मेरा अकाउंट से ओपन हो रहा है, ये वाला मेरा अकाउंट है। तो मैं फिलहाल बहुत सारे कर चुका हूँ तो इसलिए ये वाला दिखा रहा है। अगर ना हो तो देखो, ये मैं अभी तो नहीं स्टार्ट किया है ये वाला, तो ये डिजेबल नहीं है, डिजेबल है। तो एक्चुअली यहाँ पर, तो यहाँ से आप आपका खुद का जो कोर्स है स्टार्ट कर सकते हो। तो यूनिट 1 आपका, इसका 6 यूनिट है, 6 यूनिट्स आर देयर। हर एक में 4 3 2 करके पाथवेज है, और आप एक एक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे कि पाथवे 1 में आप आओगे तो आपको पहले इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन होगा, तो कैसे क्या होगा। तो आप आपका वीडियोस है इसके अंदर, कोड लैब्स है। कोड लैब्स बेसिकली क्या होता है कि आप जो कोड पूरा दे रखा है एक एक करके आपको दिखाए जाएंगे कि एक लाइन का मीनिंग क्या है, वो क्यों यूज कर रहे हैं। तो तो देख सकते हो कि रन योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग कॉटलिन, दैट इज हेलो वर्ल्ड। इन कहाँ पर प्रिंट कर रहा है, देखो ये वाला कॉटलिन प्लेग्राउंड में, ठीक है, जो हमारा इसमें ब्राउजर में चलता है, तो उसमें हम करके रखे हैं। तो बेसिकली इस तरह से एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, बाय स्टेप पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर फिलहाल है। तो इसका बर्थडे, अगर बर्थडे प्रिंट करना है उसके अलावा, तो इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और इसका पूरा जो एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा ये कैसे क्या है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे, कि आपका जो पहला है फर्स्ट क्रिएटिंग अ बर्थडे मैसेज कार्ड। तो अगर ये हम देखें, कहाँ पर हो गया, अगर ये वाला जो पेज है हमारा, तो इसमें हम एक देखेंगे कि कैसे एक
ऐप बनाते हैं। और इसका जो इस तरह से क्या बनाएंगे दिखा था वो पेज है इसके अंदर, वो शायद ये वाला दूसरा होगा। तो इस तरह से होगा कि ये वाला केक्स है, केक का जो लेयर्स है, ऊपर का एक कैंडल है, ये छोटा सा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जस्ट मैसेज। तो अब इस तरह से आपका, हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें है क्या, आप इसके थ्रू जो चीज सीखे हो, आपको एक क्विज है इसके अंदर। तो आपको एक एक करके जो आपका क्विज का आंसर भी आपको देना पड़ेगा, तभी अब ये बैच आपके लिए अर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मिनिमम अगर 10 क्वेश्चन रहेगा तो मिनिमम 8 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो इस तरह से होता है। तो बहुत सारे बहुत बढ़िया से ये कोर्स डिजाइन किया गया है कॉटलिन के एंड्रॉइड तरफ से। तो पहले आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होना चाहिए एंड्रॉइड डेवलपर के लिए। तो उसके लिए आप सिंपल जब भी इस पहले पेज पे आएंगे, तो आपका ये साइन साइन इन या फिर साइन अप करके कोई ऑप्शन आएगा, तो वहां पर क्लिक करके आप रजिस्ट्री कर सकते हो इसके अंदर। आप लॉग इन कर सकते हो, उसके बाद आप एक एक करके यूनिट सॉल्व करो, उसके बाद पाथवेज कंप्लीट करो और क्विज कंप्लीट करो। और आपका जो बैचेस है, ये वाला जो बैचेस है, आप अर्न कर सकते हो। और ये वाला कोर्स अगर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, तो आपका एक सर्टिफिकेट्स है, वो आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से। और बस इट, बस निहारी। So, adding to what Niranjan has said, the course is beautifully designed. I have learned Android development using this course only, and I would say that it's a efficient course. So you can give it a try. It is well structured for people who are not very familiar with programming, that is people with no programming background, and also for people who have a little bit of idea on programming. So either ways it works well. So it is a one-stop starter to learn Android development. So I would ask and urge you all to learn Android development using this course. And apart from that, it's better if you just keep, be a participant in these sessions as well that we are going to have from 27, that is today, to 30th. That way you will also, be able to learn about all the nicks and knacks of Android development. And I think it would be a beautiful journey. So, other than that, you know that you will get digital badges, which is one of the perks, and you can always check out your badges in your developer's profile, as Niranjan has shown us how to create a developer's profile, and therein all the badges will be residing. And if you complete all the pathways and tracks or whatever the units were, then you will also get a certificate from our side. So I think it's a good way to start Android development where you have rewards to keep yourself motivated. So other than this, if you have any questions, please shoot so that we can fix them. Okay, so I don't think anyone has any questions. So I think it's time that we sign off. Thank you so much, everyone, for joining in today. It was a delightful experience to have you all after, I think, more than a month. And we will be getting back tomorrow into Android Study Jam and learn Android development. I think it has been a beautiful session. Thank you so much, Niranjan, for guiding us so beautifully. And I don't think it would have been a difficult. It was even difficult for people who don't even have programming background. You explained it so well, and we will be back again tomorrow, and Niranjan will again continue this journey and make it much easier for us. Thank you so much, everyone. You can sign off, and I hope that you have a good evening.